So, what do you want to do, Pooja? Why you want to learn digital marketing? Sir, actually, I also do website designing. So, not professionally, but just I have read some sites. So, I want to have knowledge of this digital marketing also. Okay. Sir, I have designed many sites. Now you can unmute yourself. Yes. Sir, I take classes also, computer coding classes, C, C++, Java, I take those classes. Okay. So you want to learn digital marketing just to make sure you know about digital marketing, but your main motto is to become web designer and developer, right? Yes. Okay, fine, Pooja. So, yes, Yogesh, Yeah, आप अपने बारे में बता सकते हैं कुछ? Yeah, sure. Actually, I'm Yogesh Mittal from Haryana, and I'm a businessman. So my aim is to join this digital marketing to earn online. So I want to make a e-commerce site and launch it on online. So that's why. So Okay, I want you to are a make businessman. e-commerce site. Okay, you want to make a e-commerce website. Yeah. So okay. So only for your, so you want to learn digital marketing just to make e-commerce website or anything else? No, only as a freelancer work. So many like digital marketing so important. You actually I know that people how to, but I don't know how to implement. There are some so many tools like Samsung, see how to SEO. I don't know how to practically implement on that. Okay, you don't know how to do this. You know about digital marketing, but you don't know actually how to work on it. Yeah. So what kind of business do you do? Yeah, it's a rice related of rice paddy. Okay. So you want to sell that through e-commerce in all over India or outside India also? Many all over India and also is it possible to run the campaigning in outside like USA? So it's very difficult, Yes, you know. yes, it is possible, but I don't know how you can actually send the products, whatever you are selling. How can you send the product to US? You can promote your product in US, that is for sure. But how you can send it, this is up to you. How you're going to send but the product? it's so expensive. Yeah, I know it's very expensive to send, but we can affiliate. Yes, there are so many things we can do in that. Not an issue. Okay, thank you, Yogesh. यूएसए की साइट है तो एफिलिएट करके वहां से हम अर्निंग कर सकते हैं मे बी. Yes, there is something known as affiliate marketing. Yeah. Through which you can do all this stuff. You can do your earning stuff. Okay, thank you, Yogesh. Avinash, can you tell me about yourself? Means why you have joined this course and all this stuff? Avinash? Yes, Avinash, there is some noise. Hello? Okay, Raj, you can tell me about yourself. Raj? Kaushal? हाँ जी, बताइए अपने बारे में, क्या क्यों डिजिटल मार्केटिंग चाहते हैं? सर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अभी मेरे को कुछ भी नहीं पता. एक्चुअली मैं न्यू ज्वाइन हुआ हूँ. तो नहीं, कुछ तो सीखा, मतलब कुछ तो देखा होगा, सुना होगा कहीं. हाँ, डिजिटल मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट या किसी चीज को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करना या फिर बेचना. ओके, बेचना. ठीक है, और कुछ सुना? नहीं सर, बस इतना ही पता है. अच्छा, बस इतना ही पता है. तो मतलब आप ये कोर्स इसलिए करना चाहते हो कि आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना है, देखा है, इसका स्कोप क्या है, ये सारी चीजें देखी है, उसी हिसाब से आप इसलिए आप करना चाहते हो. तो आपने पढ़ाई क्या की है, मतलब ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन चल रहा है अभी, सेकंड ईयर. अच्छा, कौन से किसमें? बीए. अच्छा, बीए. ओके, नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं है. अब धीरे धीरे आपको मोटिव मिल जाएगा क्या करना है आपको इससे रिलेटेड. ठीक है, चलिए. ठीक है, थैंक यू. शोएब, अपने बारे में बताइए. गुड आफ्टरनून सर. थोड़ी सी आवाज कम आ रही है आपकी शोएब. हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर. शोएब, हाँ, गुड आफ्टरनून.
एक्चुअली सर मुझे मेरे फ्रेंड ने इस डिजिटल मार्केट के बारे में बताया था सम इन्फॉर्मेशन, और Okay. मैं अभी बीबीएम भी कर रहा हूँ, तो हम्म, जिसमें बिजनेस के रिगार्डिंग बताया जाता है, बिजनेस का ही पढ़ाई है, तो मुझे ये Okay. क्वाइट इंटरेस्टेड लगा जानने में। मेरा दोस्त ऑलरेडी इसमें जॉब कर भी रहा है, तो उन्होंने बोला Okay. तुम सीख लो, अगर तुम्हें फैसिलिटी मिले, मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले अच्छी जॉब की, तो तुम ट्राई भी कर सकते हो। और मुझे जानने में इंटरेस्ट भी लगा कि कैसे कैसे मतलब सेल होते हैं ऑनलाइन, किस तरह से उसको किए जा सकते हैं, तो थोड़ा मुझे बूस्ट मिलेगी, इसलिए मैंने इसे ज्वाइन किया। ओके ओके, तो मतलब ठीक है, सोच सही है। वो जो धीरे धीरे जब कोर्स आगे बढ़ता जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या फील्ड है, कहाँ पे आप अपना जी, दिमाग लगा सकते हैं इस चीज को। ये यस बहुत सर। वास्ट फील्ड है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, बाकी हम लोग पढ़ेंगे तो और भी पता चल जाएगा क्या क्या चीजें हैं इसमें। जी सर, ठीक है, थैंक यू शोएब। सुमित, थैंक यू सर। और कोई बचे हैं? अविनाश, आपकी आवाज अभी भी सही नहीं आ रही है, एक बार आप चेक करिए। हाँ, आवाज की इशू है अभी भी अविनाश। हाँ सर, मैं भी फ्रेशर है, मुझे भी कुछ ज्यादा पता नहीं है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं है। नहीं। ओके, तो कुछ सोच के आए होगे ना? हाँ सर, जॉब पर्पज के लिए। जॉब पर्पस के लिए। ओके, ठीक है। ग्रेजुएशन कर रखा है आपने या कर रहे हैं? कर रहे हैं। अच्छा, अभी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू अविनाश। सुमित, और कोई है जो बताना चाहेंगे अपने बारे में? ठीक है, आई होप बाकी सबके इंटरनेट में कुछ इशू आ रहा है। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी आज है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे हो सकती हैं। ठीक है, तो पहले हम फिर से वही डिजिटल मार्केटिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सर कैन आई आस्क वन यस, क्वेश्चन? यस, श्योर श्योर। सर अगर मैंने कोई क्लास मिस आउट कर दिया, तो फिर मैं जब दोबारा कैसे देख सकता हूँ? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे वाला समझ में नहीं आएगा। तो तो आपके फिर उसका पास क्या? रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, चिंता मत, कि जितनी भी हम लोग की थैंक क्लास होती है सारी रिकॉर्डेड होती है। सो थैंक यू आई सर। डोंट थिंक सो दैट विल बी इशू, बट हाँ, लाइव क्लास पर रहिएगा तो क्वेश्चंस पूछना ज्यादा सही रहेगा। जी सर। ठीक है, वैसे नहीं कभी मतलब कभार मिस हो अदरवाइज जाए कभी तो कोई इशू इम्पोर्टेंट नहीं आ है। जाता है, कभी कभी नहीं काम नहीं आता नहीं, है, कोई बिकॉज इशू नहीं है, वो तो रिकॉर्डेड क्योंकि अभी हम रिकॉर्डेड घर होती है पे हैं ना सर, क्लासेस। बिकॉज कोविड की वजह से घर पे हैं, घर पर कभी भी सडनली काम आ जाता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोई नहीं, थैंक यू सर। वो उसकी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है सारी क्लासेस की, तो वो इशू नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर। मिस्टर ओके। स्वैब, ये जो क्लासेस हैं वो आप जब अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करेंगे तैयारी एग्जाम की पे, जब लॉगिन करेंगे वहां भी आप अपने कोर्सेज जो जो क्लासेस हो चुकी हैं उसको आप वहां देख सकते हैं। ओके सर। स्टार्ट करते हैं सर, राहुल सर। ठीक है सर। ओके, सो हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, मतलब पिछली क्लास में भी डिजिटल मार्केटिंग में इतना कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ। सबसे सिंपल लेते हैं, कोई भी चीज हम लोग अगर पढ़ते हैं, अगर आप लोग इंटरनेट पर सर्च करते होंगे तो जनरली विकीपीडिया पे सर्च करते हैं किसी भी चीज के बारे में। तो मैंने विकीपीडिया से ही ये कुछ डेफिनेशन निकाला कि अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग that utilizes internet and online based digital technologies such as desktop computers, mobile phones, and other digital media and platforms to promote products and services. As simple as, सबसे सिंपलेस्ट ये डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन है। कोई सिंपल लॉजिक यही है कि भाई, कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग का कंपोनेंट है डिजिटल मार्केटिंग, जो इंटरनेट ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट ऑनलाइन एक ही चीज हो गया, उसको यूटिलाइज करके, किसके थ्रू यूटिलाइज करता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फोन या कोई भी डिजिटल मीडिया, जिसमें आप अपने प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। बहुत सिंपल चीज है, मतलब आपको एक मोबाइल फोन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए,
मार्केटिंग उसके थ्रू आप जो भी प्रोडक्ट होगी सर्विस होगी उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, बस वही पूरी एकदम सिंपल से फॉर्म में बता दिया इन्होंने कि डिजिटल मार्केटिंग यही होती है। एक्चुअल में सिंपल ही है मार्केटिंग जो है, जो अगर मार्केटिंग समझते हैं आप उसको डिजिटली आप कर रहे हैं। मार्केटिंग आपकी हो गई, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गई, जैसे मैं उस दिन भी डिस्कस कर रहा था लास्ट क्लास में कि टीवी के थ्रू ऐड हो गया वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गई, रेडियो के थ्रू ऐड हो गया वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गई, और जो भी मतलब डिजिटल के अलावा जितने भी है, न्यूज़पेपर के थ्रू ऐड हो गया वो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गई। बस अब हमारा वही चीज है, जो चीजें ऐड के थ्रू देखते हैं या न्यूज़पेपर में के थ्रू देखते हैं या कुछ बैनर के थ्रू देखते हैं, वही चीज हम डिजिटल में सब कुछ देखेंगे। अब डिजिटल में देखने का मतलब है कि वो चीज आप लैपटॉप पे देखेंगे, डेस्कटॉप पे देखेंगे या मोबाइल फोन पे देखेंगे। यही 3 चीजें जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग को मतलब फील कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आपको कैसे देख रहा है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप कैसे मार्केटिंग आपके डिजिटली हो रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग अगर बहुत ही सिंपल टर्म है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के तरीके बहुत सारे हैं, इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। एक सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ लिया हमने, समझ लिया, मार्केटिंग रियल लाइफ में भी मार्केटिंग एक अपने आप में एक वास्ट फील्ड है। ठीक है, लेकिन इसमें जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम करते हैं, जैसे अभी क्या है सिंपल सा लॉजिक कि भाई आपको टीवी में ऐड चलाना है ना, क्या करेंगे आप, जितना ऐड का पैसा है आपने ऐड बनवा लिया, मतलब वीडियो बनवा लिया एक जितने भी सेकंड्स का, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड जितने के हिसाब से बना दिया। आपने उससे कांटेक्ट किया भाई आज तक वालों से, भाई कितना आपका चार्ज है, भाई 10 सेकंड का 9 से 10, अब डिपेंड करता है कौन से टाइम पे आप चला रहे हैं उसके हिसाब से चार्जिंग पे डिफरेंस आता है। अब प्राइम टाइम पे चलाना चाहते हैं 9 से 10 के बीच में, तो उस समय की चार्जिंग मतलब उसमें कॉस्टिंग अलग होगी, सबसे ज्यादा होगी। सपोज 1 लाख रुपए है 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड का आपने दिया, 1 लाख रुपए दिए, उसने ऐड चला दिया, एज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में टेक्निक लगती है, लॉजिक लगता है, सब कुछ लगता है। इसमें चीजें इतनी सिंपल नहीं, आपने बना दिया और कर दिया और हो गया। न्यूज़पेपर में ऐड भी देना है, भाई न्यूज़पेपर से आपने कॉन्टैक्ट किया, बोला मुझे भाई फर्स्ट पेज पे ऐड देना है न्यूज़पेपर के, तो उन्होंने बोल दिया भाई कि हाँ हमारा न्यूज़पेपर मतलब 10 करोड़ न्यूज़पेपर हमारा रोज जाता है, तो 10 करोड़ में आपका हो जाएगा, तो उस हिसाब से इसकी कॉस्टिंग मतलब कम से कम मान लो 20 करोड़ होगी या 25 करोड़ होगी, जितनी आई डोंट नो कितनी होगी, उस हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो उसमें क्या है, आपको बस वो बैनर बना के डिजाइन बना के देना है, न्यूज़पेपर को देना भाई फर्स्ट पेज पे बना दीजिए, पैसा दिया फर्स्ट पेज पे डाल दिया, बस काम खत्म हो गया आपका। ठीक है, लेकिन मैं जैसे वही बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि डिजिटली है, आपको इसमें हर चीज को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अपने आप में ये एक टेक्निक है, जो अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या अपना बिजनेस करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं मार्केटिंग फील्ड में, अगर डिजिटल मार्केटिंग और आपको आती है तो आपके पास बेनिफिट है इस चीज की। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी तक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम लोग दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सबको क्लियर हो गया? अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप इस पर। किसी को कोई डाउट? ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं भाई, तो अब सिंपल से सबकी बात आ गई कि हाँ सब कुछ पढ़ लिया भाई, हाँ अच्छी बात है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है, वेरी गुड। बट व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? भाई क्या फायदा, डिजिटल मार्केटिंग इतना पढ़ रहे हैं, क्या कोई फायदा भी है हमें, कुछ इससे बेनिफिट भी होने वाला है कि नहीं? ठीक है, तो एक आंकड़ा दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने एक बार लास्ट क्लास में दिखाया, बोला भी था कि जियो ने इंडिया में आके इंटरनेट यूजर्स को बढ़ा दिया। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया जो है, जून में कितना था, जून 2012 में, 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2020, 2021। ठीक है, एक्सपेक्टेड है वो, ये तो पुराना है, तो एक्सपेक्टेड है, मतलब ज्यादा ही हो जाएगा इससे, मतलब कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा इससे। तो अब जरूरी ये जानना है आपको कि अब इंटरनेट इंडिया में वन ऑफ द सबसे सस्ता इंटरनेट है पूरे वर्ल्ड में। मतलब इंडिया के नीचे और एक दो देश हैं, लेकिन इंडिया की इतनी बड़ी कंट्री के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से, यहाँ का इंटरनेट कॉस्ट बहुत कम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसलिए यहाँ पे हर लोगों के पास इंटरनेट
है, अभी भी यूज करते हैं और रिसेंटली अब यूज करते ही जा रहे हैं। तो अब मैं इंटरनेट यूजर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंटरनेट यूजर बढ़ेंगे, डिजिटल प्रेजेंस बढ़ेगी। डिजिटल प्रेजेंस का मतलब भाई ऑनलाइन लोग आएंगे, इंटरनेट बढ़ेगा मतलब यूट्यूब देखेंगे, कुछ भी देखेंगे उस पर, कोई ब्लॉग ही पढ़ेंगे, कोई कुछ भी करेगा इंटरनेट पे तो है ना। जहां कोई इंटरनेट पाया तो हमारी डिजिटल मार्केटिंग है उसमें फील्ड में आ जाएगा वो। जो भी इंटरनेट यूज कर रहा है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड से मतलब से कनेक्ट कर सकते हैं। हमें उसे ऐड दिखाना है या हमें उसे प्रोडक्ट दिखाना है, कुछ भी हमें उसे दिखाना है हम उसे दिखा सकते हैं। ठीक है। अब स्कोप और एक आता है आपका कि इसमें जो मार्केट साइज है यूएसडी मिलियन, मार्केट साइज का मतलब समझिए कि इस पूरा डिजिटल मार्केटिंग मार्केट साइज कितनी है। ये यूएसडी 2.387 बता रहा है, मतलब देखो बढ़ रहा है, बढ़ने की स्पीड देखिए आप, पूरा लीनियरली बढ़ रहा है एकदम। जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ मार्केट साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है इसका। तो इसी हिसाब से आप देखिए कि इसकी ग्रोथ कैसी है। ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि मार्केट साइज की ग्रोथ कितनी। आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी लास्ट ईयर में ही लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट जो आई थी वो आई थी डिजिटल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो अब सब घर में बैठे थे, घर में बैठ के क्या करेंगे, इंटरनेट यूज करेंगे। तो इंटरनेट यूज कर रहे थे तो आपने मार्केटिंग की फील्ड बढ़ गई। अभी रिसेंटली ही बहुत सारे बिजनेस ने मार्केट डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया सिर्फ इस लॉकडाउन की वजह से। और उन्हें पता चल गया कि इस मतलब लॉकडाउन नहीं भी होगा तब भी डिजिटल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में बड़ी फील्ड है। नॉर्मल मार्केट ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपने आप में अलग जगह है और डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग एकदम तरह से खत्म ही हो गई, वो भी चलती है, डिजिटल मार्केटिंग भी चलती है। डिजिटल मार्केटिंग में अब ज्यादा फोकस होने लगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी है अभी, ऐसा वो खत्म नहीं हुआ है, वो कभी खत्म भी नहीं होगा। मार्केटिंग ऐसी चीज है वो कभी कंप्लीट खत्म नहीं हो सकती, उसका सिर्फ चेंज हो सकता है। अब पहले ट्रेडिशनल था अब डिजिटल होगा, अब आगे हो सकता है कुछ और आ जाए, लेकिन चीजें कभी चेंज नहीं होगी। मार्केटिंग, आपके पास कोई सर्विस है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप कोई भी साल में रह रहे, चाहे पुराने जमाने की बात करें या आगे आने वाले साल की बात करें, फ्यूचर में क्या होगा वी डोंट नो, बट मार्केटिंग की आपको सब जगह जरूरत पड़ेगी। बिना मार्केटिंग और सेल्स के कोई भी बिजनेस और सर्विस नहीं चल सकता। कुछ भी देख लीजिए आप मान लीजिए अभी नमक का पैकेट खरीदने जाते हैं, कोई नमक का पैकेट भाई बोलेगा भाई सपोज राहुल मेरे नाम से ही है, नमक का पैकेट है, बोले ये नहीं टाटा का चाहिए, वो ज्यादा अच्छा ब्रांड है। क्यों? मेरे को ब्रांड को कोई जानता नहीं है क्योंकि मेरी मार्केटिंग हो नहीं रखी है, कौन जानेगा मुझे। तो सब कुछ पूरा मार्केट का ही गेम है। जैसे मैंने उस दिन ही बताया था आपको कि जो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो ऑलरेडी बड़े बड़े एक्टर्स या स्पोर्ट्स पर्सन के साथ कनेक्टेड है। कोको कोला है, आपका पेप्सी है, ये सब बड़े बड़े एक्टर्स के साथ जुड़े हैं। और जो छोटे प्लेयर्स हैं मार्केट में, जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी उनके साथ कनेक्ट करके अपने आप को बूस्ट दे रहे हैं। मैं ये सब बात बोल रहा हूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब उसके साथ कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली बात है वो आपका डिजिटल में भी कनेक्टेड होंगे। अब रिलैक्सो के साथ सलमान खान कनेक्टेड है तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कनेक्टेड होगा। उनको कोई मतलब नहीं कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करिए या डिजिटल मार्केटिंग करिए, आपको मार्केटिंग करनी है बस आपके प्रोडक्ट की और सर्विस की। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कोप जो डिजिटल मार्केटिंग का है वो पिछले 2 सालों में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब हर ज्यादातर कंपनी का खुद का एक डिजिटल मार्केटिंग का पूरा बना रखा है पैनल उन्होंने, कि उनकी डिजिटल मार्केटिंग की टीम ही पूरी अलग कर दी। अब 2 तरीका है, मतलब एक्चुअली 3 तरीका है। जो ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते वो फ्रीलांसर से काम कराते हैं, जो थोड़ा सा पैसे खर्च करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से काम चलाते हैं, और तो कोई ज्यादा ही पैसे खर्च कर सकता है तो वो अपनी अपनी कंपनी में एक डिजिटल मार्केटिंग की टीम ही हायर कर लेते हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हुआ या कंसल्टेंट हुए या एसईओ एनालिस्ट हुआ, वेबसाइट डिजाइनर हुआ, जो भी इस फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग में जो जो चीजें हैं, तो ये 3 तरीके से स्कोप बढ़ गया है। क्योंकि फ्रीलांसिंग भी बढ़ गई है, क्योंकि अब मान लो जिसके भाई जिस पे डिपेंड करता है मेरा बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, मुझे बट डिजिटल मार्केटिंग करानी है, मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या फायदा है, नुकसान है, कुछ बेनिफिट करेगा नहीं करेगा, तो वो क्या करते हैं जनरली फ्रीलांसर से काम करवाते हैं। फ्रीलांसर कम में काम कर देते हैं, कंपनी से काम करवा सकते हैं। और जो बड़ी कंपनी है, अब जैसे
गूगल है या कोई भी बड़ी कंपनी ले लीजिए, तो वो उसकी डिजिटल मार्केटिंग कोई कंपनी नहीं करते, उनका खुद का एक कंपनी, वो खुद का अपना डिवीजन होता है डिजिटल मार्केटिंग का, वो डिजिटल मार्केटिंग खुद करते हैं। हाँ, हो सकता है बाहर से वो हेल्प लें, लेकिन उनकी टीम खुद ही रहती है नॉर्मल केसेस। कुछ कंपनीज हैं, हो सकता है कि हाँ, अब जैसे एक यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, एक यहाँ पे एक एस ग्रुप है आपके दिल्ली एनसीआर में, एस ग्रुप। तो एस ग्रुप से मेरी बात ये 3-4 साल पहले हुई थी, तो उस समय उनके पास डिजिटल मार्केटिंग की टीम नहीं थी, वो लोग बाहर से डिजिटल मार्केटिंग कराते थे। तब आज की डेट में क्या कराते हैं आई डोंट नो, मैं उनके टच में नहीं हूँ, लेकिन मेरी 3 साल पहले जब बात हुई थी तो उस रिगार्डिंग किसी बात है, तो पता चला था मुझे कि वो लोग खुद से डिजिटल मार्केटिंग नहीं कराते थे, वो बाहर से मतलब किसी कंपनी से के थ्रू कराते थे। अब डिपेंड करता है, अब ज्यादा आपका अगर बढ़ रहा है खर्चा, तो आप ऑब्वियसली बात है डिजिटल मार्केटिंग टीम हायर कर सकते हो, जहाँ पे 4 या 10 लोगों की टीम हो, उस पर डिपेंड करता है, ऐसा है। तो मोर और लेस ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, टीम ना और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बढ़ना और फ्रीलांसर्स बढ़ना, मतलब कि कहीं ना कहीं डिजिटल में काम बढ़ता जा रहा है लोगों को, इसीलिए ये सब चीजें कर रहे हैं, इसीलिए हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, इसीलिए स्कोप भी बढ़ रहा है डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, बट ये चीज है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत आसान है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिस से ज्यादा important है, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। मैं तो आपको बताते जाऊंगा एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन जब आप सामने में एक्चुअली देखोगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। मैंने तो बता दिया भाई कि ये देखिए, ये 100 लिंक है, ये लिंक बनाइए, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा एसईओ में। लेकिन जब आप खुद बनाएंगे, खुद देखेंगे क्या क्या चीजें दिक्कतें आती हैं, ऐसा किसी भी चीज में, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड की बात करूं, किसी भी चीज में श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है। हाँ, सेट ऑफ रूल्स है कि उस रूल्स को आप फॉलो करिए, उससे रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कभी कभार होता है 1%, मतलब 1% से ज्यादा ही चांस होता है, ज्यादातर होता है, ठीक है वो चलता है। कभी कभार होता है कि वो चीज नहीं चल रही है, तो वो चीज में फिर आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पे गड़बड़ी हो गई, कि हमने जो काम कर रहे हैं वो गलत तो नहीं कर रहे। चीजें हैं, बहुत सारी चीजें करने के लिए इसमें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होंगे, जितने तरह के एड्स पे काम करेंगे, जितने तरह के वेबसाइट्स का एसईओ करेंगे, या जितने तरह के वेबसाइट्स का, जितने तरह के कंपनी का सोशल मीडिया हैंडल करेंगे, उस हिसाब से चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि हर एक का, मैंने जैसे उस दिन भी कहा था, हर एक बिजनेस की मार्केटिंग बिल्कुल तरीका अलग अलग है। रियल लाइफ में भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी वैसे ही होता है, और डिजिटल मार्केटिंग भी वैसे ही होता है, सबका तरीका बिल्कुल अलग है। किसी का ऐड 24 घंटे चलता है, किसी का ऐड पर्टिकुलर टाइम पे चलता है, किसी का कॉल ऐड चलता है जिससे कि कॉल आए, किसी का डिस्प्ले ऐड चलता है, भाई सिर्फ फोटो दिखनी चाहिए हमें, सिर्फ प्रमोशन करना है अपना, लोग जाने कि हम लोग कुछ हैं। कुछ लोग चाहते हैं भाई प्रमोशन करना है ठीक है, लेकिन हमें कॉल भी आनी चाहिए रोज, तो कॉल आए उनके पास, उसके लिए ऐड चलेगा। कोई बोलते हैं भाई कॉल नहीं आए मुझे, मेरे पास सिर्फ मतलब नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस आ जाए, हम लोग फिर उनसे खुद बात कर लेंगे, हमारे यहाँ से कुछ लोग टेलीकॉलर होंगे, वो खुद बात कर लेंगे, तो वो भी एक तरीका है। तो तरीका बहुत सारा है, प्रमोट करिए, लीड लीजिए आइए। अब मैं लीड की जो बात कर रहा हूँ, लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब होता है जब भी आप, कोई आपको अपना फोन नंबर, ईमेल एड्रेस देता है, दैट इज कंसिडर्ड एज लीड। हम इसको मतलब डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में अगर हम बोले, उसको बोलते हैं लीड जनरेशन कैंपेन, मतलब लीड जनरेशन करते हैं। लीड जनरेशन करने का मतलब है कि आप कॉल के लिए ऐड चला दीजिए, किसी के थ्रू भी आपके पास पर्टिकुलर जो कस्टमर है या क्लाइंट है, उनका फोन नंबर आना चाहिए, उनकी कॉल आनी चाहिए, या आप खुद, आपके पास नंबर और फोन नंबर आ जाना चाहिए जिससे कि आप खुद उसको कॉल कर सके, तो दैट इज नोन एज लीड। एक हो गई आपकी सीधा, भाई आपको मार्केटिंग करनी है, रोज आपने ऐड चलाया हुआ है, रोज 10,000 लोग देख रहे हैं, आपकी मार्केटिंग चल रही है बढ़िया, मतलब लोग रीच पहुंच रही। वो जनरली तब होती है जैसे आप नए ब्रांड हैं, आप थोड़ा बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, पहले अपने आप बारे में जान बताना चाहते हैं कि हाँ हम हैं जो ये काम करते हैं। जैसे दिल्ली में बहुत सारी कंपनीज है, मतलब दिल्ली में क्या बोलूं, पूरे ऑल इंडिया ओवर में बहुत सारी, हर एक चीज के लिए, मतलब एक चप्पल बनाने की कंपनी भी आपको 100 मिल जाएगी कम से कम इंडिया में, जो मतलब रिलैक्सो, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उसके अलावा। तो वो लोग अपने आप को कैसे शो करेंगे? इसी तरह से शो करेंगे, भाई हम भी एक ब्रांड है जो ये काम करते हैं, तो इस तरह से ब्रांडिंग, वो ब्रांडिंग पे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि आई डोंट नो, कि थम्सअप का भी ऐड आता है। थम्सअप का ऐड आके क्या होगा? क्लिक करने से कोई फोन नंबर थोड़ी देगा, या कॉल थोड़ी करेगा, या कोई ऑनलाइन थोड़ी खरीदेगा थम्सअप को, लेकिन वही ब्रांड बनाना है,
ब्रांडिंग हो रही है इसी वजह से। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो BMW का एड है, जनरली जो भी बड़े बड़े जैसे लैम्बोर्गिनी का एड्स है, ये सब टीवी पे नहीं आता। पता है क्यों? कोई बता सकता है मुझे इसका रीजन? जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे आईफोन का तो ऐड आता है, लेकिन जो जैसे कार का ऐड बोलूं, रोल्स रॉयस का, जितने भी बड़े बड़े कार के ब्रांड्स हैं, उनका ऐड नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं कि इंडिया में मिलता नहीं है, मिलता है, लेकिन इंडिया में ऐड नहीं दिखाई देता उसका। कोई बता सकता है क्यों? कोई? शोएब, पूजा? आई थिंक सर इंडिया में इतना पेइंग कैपेसिटी या उनको लगता है कि कस्टमर्स उस टाइप के नहीं है, या इंडिया की जो वर्किंग जो कंडीशंस है, फिजिकल कंडीशन वो मैच नहीं करती है, जैसे उनको मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, वो एक्चुअली कहीं पे भी ऐड नहीं दिखाई देता। हाँ 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 ओके। इंडिया में तो ठीक है, इंडिया की बात करो, मैं कहीं भी ऐड नहीं करता। एक्चुअली इनका ऐड इसलिए नहीं चलता, सर, उनको लगता है कि, हाँ बोलिए। नीड ही नहीं है। वेल क्या क्या पूजा? बोलिए, फिर से बोलिए। सर वो ऐड ही नहीं करते, आई थिंक इसलिए कि ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है। जैसे एक बार हाँ, पर वेल एस्टैब्लिश्डनेस का मतलब ऐड तो करना चाहिए ना। ब्रांड कैसे बना है फिर वो? वेल एस्टैब्लिश्ड है, बिल्कुल करेक्ट, वेल एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन उनका मेन रीजन ये है, उनको ये लगता है कि वो ऐड तो चला तो दें, उनका बेनिफिट है, लेकिन क्या उनको खरीदने वाला आदमी के पास टाइम है इतना कि वो ऐड देखेगा? उसके कहने का मतलब ये है। हाँ, जैसे एप्पल का कभी टीवी में नहीं आता ऐड। नहीं आता है, ऐसा नहीं है, एप्पल का आता है। मेरे कहने का मतलब देखो, एप्पल का तो, एप्पल ऐसी चीज है, कोई नहीं, वन टाइम है, मैक्सिमम कितना, 1 लाख रुपए का है, तो किसी ना किसी तरह रो धो के सेकेंड हैंड फर्स्ट हैंड खरीद ही लेता है। अब उसको रोल्स रॉयस खरीदनी है, रोल्स रॉयस खरीदने का मतलब ये लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, तो करोड़ों में बात हो जाती है ना सीधा। अब फोन, आईफोन, जैसे आपकी बाइक है, हायाबुसा बाइक है, जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक है, वो भी तो कम ही लोग लेते हैं ना। अभी रिसेंटली होंडा की एक बाइक आई है, वो 40 लाख की है करीब की। होंडा का वो नाम है इसका, मैं अभी भूल रहा हूँ नाम उसका। वो बाइक 40 लाख रुपए की। अब 40 लाख रुपए का बाइक कौन लेगा भाई? जिसके पास इतने पैसे होंगे तभी तो लेगा ना वो। मैं तो लाख की बात करूँ, वो तो करोड़ों की कार होती है। तो वो इसीलिए लोग नहीं मतलब करते हैं, उनको ये लगता है कि उनका ऐड देखने वाले जो लोग हैं वो नॉर्मली ऐड नहीं देखते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है जो ऐड देखें। उनको खरीदना होगा, वो सीधा खरीद लेंगे। मतलब लॉजिकली कहने का मतलब ये, वो ऐड इसलिए नहीं चलाते क्योंकि उनका जो कस्टमर है, जो बेस है उनका, जो खरीदने वाला है, वो कभी ऐड देखता नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। मतलब जो भी बहुत बिजी लोग होते हैं, जो उस तरह की गाड़ी को अफोर्ड कर पाते, तो वो ऐड नहीं देखते, इसी वजह से जनरली ऐड नहीं चलता। ठीक है, आई थिंक अब ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, स्कोप और ये चीज। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। क्लियर है सबको? यस सर, यस। शोएब, सुमित, सबको क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हाउ डू वी डू फ्रीलांस विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आई होप ये चीज सब जानना चाहेंगे आप में से कि फ्रीलांस करके कैसे कमाया जा सकता है डिजिटल मार्केटिंग से पैसा। ये कोई होक्स नहीं है, यू कैन डू दैट। ऐसा कोई नहीं है, वो वाली प्लानिंग नहीं कि भाई 10,000 रुपए लाओ और 1 महीने के अंदर 10 लाख पाओ, ऐसा वाला हिसाब किताब। इसमें आप सही में पैसा कमा सकते हैं, कम ज्यादा डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स आप ये काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें डिपेंडिंग है आपके ऊपर कि आपको कितना चीजें आती हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। अब फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा कैसे कमाते हैं, जैसे सपोज अब मैं एग्जांपल ही लेता हूँ। जैसे पूजा, आपने बोला ना कि आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो, है ना, आपका काम है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो। अब आपने सपोज किसी आपके जान पहचान में किसी ने बोला भाई मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे अपना बिजनेस ऑनलाइन कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलोगे? ऑनलाइन कराना है सर आपको, तो जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे या दूर के रिलेटिव्स होंगे, तो आप उनको क्या बोलेंगे कि आप ऐसा करिए, आप सबसे पहले वेबसाइट बनवाइए, क्योंकि वेबसाइट नहीं होगी तो लोग कैसे देखेंगे आपको। वेबसाइट बना दी, फिर आप इसका एड चलाइए, फिर आपको प्रमोट करिए सोशल मीडिया पे।
तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें कोई एक ही कर सकता है, ऐसी कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन जिसको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होगी वो करना शुरू कर सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि जो पैसे देने वाला है आपको, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है देने के, तो इसी वजह से वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनको थोड़ा बहुत आता हो और वो रिसर्च करना चाहते हैं कि क्या ये चीज करने से उनको फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, फ्रीलांसिंग करके आप इस तरह से भी पैसा कमा सकते हैं, मतलब आपके कोई जान पहचान वाले लोग ही आपको बोल देंगे, या आपने उनको अप्रोच कर दिया कि भाई आपका ये है बिजनेस है, आप ये चीज कर सकते हैं, इससे बेनिफिट होगा आपको। पैसे पैसे कितने देने हैं वो बात की बात होगी, लेकिन वो, और मेरा एक और इसमें पॉइंट ये है कि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग कहीं से भी करें, सीखें आप डिजिटल मार्केटिंग को, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी के लिए जरूर मार्केटिंग करें जो भी आपने सीखा है। आपने बोल दिया भाई कि किसी आपके रिश्तेदार में किसी की वेबसाइट है, तो आपने बोल दिया भाई मैं आपकी वेबसाइट अभी उसका एसईओ करूंगा, अगर आपको लगेगा बेनिफिट तो आप मुझे पैसे देना, इस तरह से कर सकते हो। या पैसे देखो डिपेंड कर सकता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद कोर्स कहीं से भी आप करो, तो आपको कम से कम 3 महीने की इंटर्नशिप करनी चाहिए कहीं पे भी, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी जो आपने सीखा है वो रियल लाइफ में काम कैसे करना। क्योंकि खुद अगर आपने वेबसाइट बना ली और खुद करने लगा तो आपको उतना बेनिफिट लगेगा कि हाँ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो बात की बात है। अभी भी हम लोग करेंगे, सब लोग अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे, खुद से काम करेंगे, खुद से रिजल्ट आएगा। लेकिन जब किसी दूसरे के लिए काम करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट इसलिए आएगा क्योंकि फिर उनके आप जो उनकी रिक्वायरमेंट है आप उनको समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को कर पाएंगे। करेक्ट। ठीक है, तो ये है आपका ठीक। फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के थ्रू हम यही काम कर सकते हैं कि फ्रीलांसिंग आपका जितना भी फ्रीलांसिंग मिले, वो तो डिपेंड करता है, अगर आपको जॉब मिल जाती है आप फ्रीलांसिंग मत करिए। बहुत लोग फ्रीलांसिंग करते हैं जॉब करते करते भी, डिपेंड करता है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने देर काम कर सकते हैं, कितने मतलब काम कर सकते हैं आप किस चीज को लेकर। हेलो पूजा, कुछ बोल रहे थे आप? नो सर, नो सर। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर एक एफिलिएट मार्केटिंग नाम की चीज होती है, उसको मैं सिंपल से फॉर्म में बताऊं, जैसे उस दिन भी मैंने डिस्कस किया था, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वो लोग भी एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा कुछ परसेंटेज देते हैं, डिपेंड करता है 1% दें, 2% दें, 3% दें, कुछ कंपनीज 4-5% तक भी दे देती है। कुछ सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनीज हैं जो टूल देते हैं, टूल बनाते हैं, वो कंपनीज 50% तक कमीशन दे सकती है अगर आपने उनका टूल बेच दिया। तो वही डिपेंड करता है। टूल बेचने का मतलब क्या है कि आपने किसी को फोन करके नहीं, आपने अपनी वेबसाइट बनाई है या अपना ब्लॉग बनाया है, वहां पे आपने लगा रखा है, किसी ने क्लिक करके उसको खरीद लिया, तो वो उसको आपके आपके उसमें आ गया कि भाई मेरे मेरे लिंक के थ्रू उसने खरीदा है। तो ये चीज रियल लाइफ में भी आपने सुना होगा, रेफरल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, कि आपने रेफर किया उसने ले लिया। आजकल जैसे हर जगह रेफरल मार्केटिंग चल रही है। जैसे मान लीजिए मैंने एयरटेल का मैसेज आता है, एयरटेल का मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो एयरटेल का मैसेज आता है कि आप अगर किसी को रेफर करिएगा तो आपको इतने रुपए मिलेंगे और उसको भी उतने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो और कोई बोलता है जैसे बिजनेस में बीबी एक डेली है, बिग बास्केट डेली नाम से, तो उसमें रोज के सामान आते हैं, दूध, ब्रेड, ये सारी चीजें आती हैं। तो उन्होंने भी ऑफर चलाया है कि रेफरल मार्केटिंग, तो अगर आपने हमें किसी किसी ने आपके थ्रू हमारी ये लिए सर्विस, तो आपको 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा और उन्हें भी 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो इस तरह से रेफरल मार्केटिंग बेनिफिट है। और उसमें एफिलिएट मार्केटिंग में ही होता है, इस रेफरल मार्केटिंग में दोनों को बेनिफिट मिलता है, आपको भी मिलता है जिसने रेफर किया, और जिसको जिसको रेफर किया उसको भी बेनिफिट मिलता है। अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि भाई आपको अमेजोन या किसी ने, आपने खुद ही, इस बात है अमेजोन आपके पास नहीं आता है, उनके पास उनका खुद का चल रहा होता है अमेजोन की वेबसाइट पे, अमेजोन एफिलिएट। मैं एक्चुअली आपको दिखा देता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अमेजोन देखिए, अमेजोन एफिलिएट ये है, इसको क्लिक करेंगे, दिख रहा है सबको स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? तो देखिए स्क्रीन में यहाँ पे अमेजोन एसोसिएट, ये देखिए मार्केटिंग प्रोग्राम, वेलकम टू वन ऑफ द बेस्ट, इसका सबका कैसे कैसे अर्न करते हैं, क्या अर्न करते हैं। यहाँ से आपको क्या कर, इसको करने के बाद आप प्रोडक्ट चूज करेंगे, उस प्रोडक्ट को चूज करके उसकी एक लिंक मिलेगा आपको,
अब वो लिंक चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर दीजिए या अपनी वेबसाइट आपने बना रखी है उस पर आपने लिंक डाल दिया फोटो के साथ, कैसे भी, मतलब उस लिंक के थ्रू किसी को वो चीज खरीदनी पड़ेगी, तभी आपके पास वो आपका कमीशन, मतलब जो भी आपका कमीशन बोलने का मतलब है अमेजोन जितने भी परसेंटेज आपको देगा उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो आपके पास आ जाएगा। हर चीज देखने में सेमने में सिंपल चीजें हैं, लेकिन उसके करने में थोड़ा सा चीजों को लगता है। अब उस चीज से आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लो जैसे सपोज एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप थोड़ा सा इसमें एक्टिव रहोगे, हर चीज में एक्टिव रहने का, अगर कूलर जैसे मान लो अभी गर्मी का सीजन हो गया, कूलर लोग ज्यादा खरीदते हैं या एसी ज्यादा खरीदते हैं, तो उसकी एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करो तो बिकने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि सिचुएशन टू अकॉर्डिंग सिचुएशन कि क्या चल रहा है, अभी क्या बिक सकता है, उसकी मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग करें तो उसके बिकने के चांसेस ज्यादा हैं। अब सिंपल सी बात है, गर्मी स्टार्टिंग में ठंडे के कपड़े बिकेंगे नहीं, तो वो उसके मार्केट उसके फायदा नहीं है करने का। रेनकोट है, अब रेनकोट है मान लो ठंडे का सीजन है, रेनकोट बिकने के चांसेस कम होता है। रेनकोट का बिजनेस इसी टाइम पे चलता है जब आपका मानसून शुरू होता है, उसी टाइम में लोग रेनकोट का बिजनेस, मतलब रेनकोट सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें देखनी है कि किस तरह से चीजों को कर सकते हैं। इसी तरह अमेजोन का भी है, फ्लिपकार्ट का भी इसी तरह है। जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो सारी मतलब ज्यादातर जो बड़ी कंपनीज हैं वो ज्यादातर ये एफिलिएट मार्केटिंग कराती है, क्योंकि उनका एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी प्रोडक्ट बिकता है। मतलब आपने अपना, लोग बोलते हैं बहुत आसानी से कि हाँ भाई अमेजोन में फ्री है, फ्लिपकार्ट में फ्री है, वो तो परसेंटेज आपसे चार्ज करता है ना, कि आप भाई अपने 2000 रुपए का सामान बेच दिया तो इतना परसेंटेज आपको अमेजोन को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपका सामान बिकवा दिया, राइट। अब अमेजोन भी वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग तरह से काम करता है। वो अमेजोन ने ऐड चला दिए, एफिलिएट मार्केटिंग करा दी। अमेजोन भी डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं अपना, ऐसा नहीं है, उनका भी ऐड देखती हैं। जैसे आपने देखा था उस दिन की, कोई भी आपने क्लिक किया तो वो पीछे पड़ जाता है वो ऐड, वो इसीलिए पड़ जाता है क्योंकि वो उन्होंने भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग करा रखी है। तो ये सब तरीके के थ्रू उनको एक्सपेंसेस है, तो वो एक्सपेंसेस कौन देगा? जिसका सामान बिक रहा है वही तो देगा ना। तो ये सारी चीजें हैं जिससे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें हर चीज के हिसाब से वही है कि थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा। लॉजिक समझ जाएंगे तो ये चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। आई होप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। और भी हम डिटेल में बात करेंगे, जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी उसके बाद मैं बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे चीजों को हम कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। अब हम आते हैं एक मिनट, सब डिस्कनेक्ट कैसे हो गए? एनीवेज चलिए, अच्छा हाँ, शुरू करते हैं। लास्ट ओवरव्यू मॉड्यूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग, मतलब हम डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेना है। तो उसके लिए हम, जैसे आपकी वेबसाइट जो है डिजिटल मार्केटिंग की, जो हमारी तैयारी.com की वेबसाइट जो है, इसमें आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। इसी को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे ये हम आज का डिस्कशन है, आज का डिस्कशन यही था, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, स्कोप है, हाउ वी डू फ्रीलांसिंग, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वेबसाइट हम पढ़ेंगे। थर्ड थर्ड में हम वेबसाइट पढ़ेंगे। वेबसाइट में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे भाई? टाइप्स ऑफ वेबसाइट है, सर्वर क्या है, कैसे सर्वर काम करता है, सर्वर को कैसे खरीदा जाता है, डोमेन क्या चीज होती है, सर्वर को डोमेन से कनेक्ट कैसे करते हैं, होस्टिंग नाम की क्या चीज होती है। सुना होगा आप लोगों ने, किसी ने होस्टिंग, जिसने अगर पहली बार आए हैं उनको पता भी नहीं होगा होस्टिंग डोमेन क्या होता है। वेबसाइट सबको पता है वेबसाइट होती है, पर वेबसाइट कहाँ से बनती है? होस्टिंग होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए उसके लिए। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। वेबसाइट डेवलपमेंट हम वर्डप्रेस के थ्रू करेंगे। वर्डप्रेस में कैसे कैसे चीजें काम करती हैं, मेन्यू बार कैसे बनता है, ड्रॉप डाउन कैसे होता है, कैटेगरी पेजेस कैसे बनते हैं, पेजेस कैसे बनते हैं, एलिमेंटोर नाम की एक वो इसमें वो होता है, टूल होता है जिसके थ्रू आप डिजाइन करते हैं।
वर्डप्रेस को की वेबसाइट को। फिर उसके बाद स्लाइडर कैसे बनाएंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं, पॉपअप इंक्वायरी कैसे करते हैं, कंटेंट कैसे लिखते हैं, मतलब कंटेंट लिखना नहीं, कैसे लिख पाते, मतलब वहाँ जो भी आपके पास कंटेंट है उसको कैसे कॉपी पेस्ट करके लिखते हैं, प्लगइन्स को कैसे यूज करते हैं वेबसाइट पे, सोशल लिंक को कैसे, चैट बॉक्स कैसे लगाते हैं। फिर उसके बाद आ गया वू कॉमर्स। ये वू कॉमर्स जो भी बता रहे थे ना आप लोग, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, तो जो वेबसाइट वर्डप्रेस में वेबसाइट जो है वो वू कॉमर्स के थ्रू बनती है। वू कॉमर्स जो है के थ्रू आप वर्डप्रेस में ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। तो सेटिंग अप एन ई कॉमर्स वेबसाइट, ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम बेसिक नॉलेज ऑफ एचटीएमएल टैग्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। अगर मेरे एक्सपीरियंस से बोला जाए, सबसे सबसे मतलब अच्छा टॉपिक बोला जाए, बाकी सबसे अच्छा नहीं बोल सकता हूँ कि अच्छा टॉपिक है खराब टॉपिक, ये कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जॉब्स एसईओ में होती है, क्योंकि सारी वेबसाइट तो ऑलमोस्ट एसईओ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब एसईओ जो है, एसईओ क्या होता है, एसईआरपी क्या होता है, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन जानते हो आप लोग क्या होता है सर्च इंजन? गूगल सर, गूगल, याहू, बिंग। गूगल, याहू, बिंग। और रशिया में अलग चलता है, चाइना का अलग चलता है। चाइना का पता है कौन सा है सर्च इंजन? बाइडू, सुना है बाइडू? देखना, क्योंकि चाइना में बैन है ना गूगल, तो वहाँ का खुद का है बाइडू नाम से। फिर रशिया का अलग है। तो मतलब इंडिया में जहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश समझते हैं वहाँ पे ज्यादातर गूगल, याहू, बिंग भी चलता है। मतलब यूएस में थोड़ा बिंग ज्यादा चलता है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो गूगल सबसे ज्यादा चलता है अभी भी। तो गूगल का तो अभी भी तोड़ नहीं है, और गूगल का तोड़ नहीं है, इसीलिए एसईओ मार्केट हमेशा रहेगा। जब तक गूगल रहेगा तब तक एसईओ का मार्केट रहेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। अब रैंकिंग फैक्टर कैसे होता है, गूगल की टर्म एंड कंडीशन क्या है, एसईओ स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं किसी बिजनेस का, किसी बिजनेस की कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी कैसे करते हैं। कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी मतलब आप भी बैटरी बेचते हैं, सपोज आप एक्साइड, आपने बैटरी की एक लोकल बनाना का स्टोर है। बैटरी लोकली बहुत सारी बनती है मार्केट में, एक्साइड है, एक्साइड तो लोकल नहीं है तो ब्रांड हो गया, लुमिनस ब्रांड हो गया, ओकाया ब्रांड हो गया, इन सब की बैटरीज बनती हैं। लेकिन आप लोग देखने देखा होगा लोकली भी बैटरीज बनती है। अगर कोई बोलता है भाई लोकल बैटरी वाला कि हाँ मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं मार्केट में खर्च करने के लिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी आप एसईओ करें, तो अब वो एसईओ कैसे करेंगे? वो पहले आपको, जब भी आप किसी का एसईओ करते हैं, आप स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आप पहले कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी इसमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है एसईओ का काम करने से पहले। मतलब कोई भी काम करेंगे आप डिजिटल मार्केटिंग में, आपको ये देखना जरूरी है कि उस फील्ड में जो ऑलरेडी काम कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है और आप उसमें अपना क्या दिमाग लगा सकते हैं। जो कभी होता है कि आप उसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए तब भी काम चल जाएगा, कभी कभार उसमें थोड़ा सा ट्वीक की रिक्वायरमेंट होती है, कभी यहाँ चेंज कर दिया, कभी यहाँ चेंज कर दिया, इससे कुछ हो गया। अब उनका सारी चीजें तो आप देख नहीं पाएंगे, जितनी चीजें देख सकते हैं उसके हिसाब से आप बजट के, हर चीजें डिजिटल बजट पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे कितना है, किस चीज पे आपको करना है। नॉर्मली मैं आपको बताऊं, जैसे अगर हम किसी वेबसाइट पे काम करते हैं, जैसे सपोज नई वेबसाइट है, किसी के पास पैसा है, वो तो बोले भाई हमें डिजिटल मार्केटिंग शुरू करनी है, हमारा एसईओ भी कर दीजिए, हमारा ऐड भी चला दीजिए, सब कुछ चला दीजिए हमारा। तो अब उस केस में क्या होता है कि जब हम ऐड चलाते हैं तो खर्च होता है, एसईओ भी करते हैं, खर्च, कोई भी चीज करते हैं खर्च होता है। तो उस खर्च को हमें जस्टिफाई करना पड़ता है भाई, कि एक का मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि 50,000 महीने का बजट है उसका, ठीक है, बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अच्छा खासा। वो चाहते देखना कि भाई 6 महीने में 50,000 खर्च करता हूँ, मतलब 3 लाख रुपए खर्च करके देखना चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस डिजिटली कैसे ग्रो होगा। ठीक है, अब तो इसमें क्या कर सकते हैं, अब आपको ये देखना पड़ेगा एसईओ में कितना पैसा खर्च लगाएं, एड में कितना पैसा लगाएं। स्टार्टिंग में ये होता है एड में ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, एसईओ में कम लगाना पड़ता है। जैसे आपका एसईओ ग्रो करता जाता है तो आपका एड का पैसा कम हो जाता है। ये चीज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है। ये एक मैं सिंपल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जिससे ये चीजें हो सकती हैं। अब एनालिसिस में टेक्निकल रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड। अब इसमें एक चीज आती है कीवर्ड नाम की चीज। कीवर्ड बता सकते हो क्या होता है?
कोई आप में से सुना है कभी कीवर्ड के बारे में? व्हाट इज कीवर्ड? सर जो सर, वर्ड रैंक yes, sir. कराना। हाँ, शोएब आप बताओ पहले, पूजा से मैं अभी बोल रहा हूँ। शोएब आप बताओ। सर कीवर्ड वो होता है जो जो मतलब कि उस टाइम चलता रहता है, उसको यूज करते हैं। जैसे कुछ कीवर्ड रहता है जो सर्च करने में कम आता है, कुछ यूज करते हैं उस तरह का कीवर्ड। अच्छा ठीक है, पूजा आप बताओ अब। सर वर्ड जो रैंक कराते हैं गूगल पे। वर्ड जो रैंक कराते हैं, ठीक है, सर वो तो मतलब वर्ड हो गया। कीवर्ड का वर्ड मतलब क्या हुआ? कीवर्ड मतलब वर्ड तो ठीक है, वो कीवर्ड मतलब वर्ड्स ही हैं। व्हाट डू सर यू मीन बाय इम्पोर्टेंट, कीवर्ड्स? सर आई थिंक इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो मतलब जो रिक्वायर्ड है, जैसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो ये बिल्कुल राइट, दिस इज अ कीवर्ड। बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, दिस इज अ कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड आप कहने का मतलब कुछ भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली भी, ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है, इंस्टीट्यूट इन दिल्ली ये भी एक कीवर्ड है। सिर्फ दिल्ली ये कीवर्ड है, लेकिन कोई फायदा नहीं है इस कीवर्ड का, क्योंकि ये कोई फायदा नहीं है। दिल्ली कौन सर्च करता है? कोई कंपनी थोड़ी सर्च करेगी। हाँ, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट इन दिल्ली थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इंस्टीट्यूट इन दिल्ली ये थोड़ा सा, अब इसमें पता ही नहीं हमें कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो जनरली ये भी कीवर्ड नहीं आता है। अब किस चीज का इंस्टीट्यूट है? जैसे डिजिटल मार्केटिंग का, तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट देखो लिखा हुआ आ रहा है ना नीचे में, जितने सारे ये आ रहे हैं सजेशंस, ये जितने भी सजेशंस आते हैं ना, जनरली ये कीवर्ड्स होते हैं। मतलब इसको कहीं ना कहीं किसी ने सर्च कर रखा है, इसलिए ये सजेशन में दिखाता है। तो ये सारे कीवर्ड्स ही हैं। अब कीवर्ड्स का डिफाइन ये होता है कि कीवर्ड्स वॉल्यूम पे होता है कि कितना लोग उसको महीने में सर्च करते हैं। किसी कीवर्ड को 10 लाख बार भी सर्च करते हैं, किसी कीवर्ड को कब कैसे भी सर्च करते हैं, सबके हिसाब से अपने अपने सर्चेज होते हैं। तो जिसके कम सर्चेज होते हैं उसका उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं। थोड़े से सर्चेज होते हैं, जैसे महीने में 1000 लोग सर्च करते हैं या 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं, डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर कि किस तरह के हमें कीवर्ड लेने हैं। तो बेसिकली कीवर्ड आर दोज वर्ड्स विच जनरली यूजर यूजेस टू सर्च ऑन गूगल, मीन सर्च इंजन। कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं, अब जैसे ये एक कीवर्ड हो गया। एक आता है नियर मी वाला कीवर्ड, एक आता है नियर मी वाला कीवर्ड। नियर मी मतलब जैसे कार शोरूम नियर मी, कार शोरूम नियर मी, ये देखो कीवर्ड है ये। यहाँ देखो एक ऐड चल रहा है, वॉक्सवैगन का ऐड चल रहा है, तो इन्होंने इस कीवर्ड पे ऐड चल रखा है, कार शोरूम नियर मी पे, इसलिए इनका ऐड दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी ऐड दिख रहा है इनका, ये ऐड यहाँ पे देखो, ये लोकल लोकल में ऐड दिख रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ऐड के जरिए टॉप पे आ सकते हैं जल्दी, ये बेनिफिट होगा। एसईओ के जरिए आप धीरे धीरे टॉप पे आएंगे, लेकिन अगर एसईओ के जरिए आप आ गए टॉप पे, और अगर रिसेंटली कर रहे हैं, तो फिर आपको ऐड चलाने की जरूरत नहीं, मतलब कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी कोई भी कीवर्ड पे। ठीक है, अब ये जैसे आप देखते हो जस्ट डायल लिखा हुआ है, जस्ट डायल आ रहा है, जस्ट डायल कार देखो, ऑटो पोर्टल, इन सब की बड़ी बड़ी टीम बैठी है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। क्यों, कैसे आ रहा है? ये ऐसा थोड़ी कि गूगल को पैसा दे दिया और आ गया। ये लोग अपनी डिजिटल मार्केटिंग करा रखे हैं। कार डीलर्स इन नोएडा के बारे में, क्योंकि हम नियर मी हूँ, मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, तो ये नोएडा की कैच कर रहा है, तो नोएडा का। तो ये सारे जितने भी ये आ रहे हैं ना, ये इतनी आसानी से नहीं आते हैं, ये बहुत मेहनत से आते हैं। यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। इस चीज को करने के लिए, मतलब एसईओ करने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है। और मैराथन वाला पूरा है, मैराथन वाला गेम है ये। स्प्रिंट रेस एक समझते हैं ना, स्प्रिंट और मैराथन। उसेन बोल्ट जो है वो 100 मीटर की दौड़ सबसे तेज भागता है, लेकिन वो मैराथन तेज नहीं भाग सकता। मैराथन भागने वाला जो है 21 किलोमीटर की मैराथन होती है, जो 40 हाफ मैराथन और फुल मैराथन जो होती है, तो उसको भागने वाला अलग होता है। तो ये जो एसईओ वाला गेम है ना, पूरा मैराथन वाला है। जब तक कंटिन्यूअसली भागते रहिए, आपका एसईओ अच्छा चलता रहेगा। जैसे आपने भागना बंद किया, पीछे से जो भाग रहा है वो आगे निकल जाएगा। तो इसमें एसईओ है कि एसईओ जो है, ऐसा नहीं कि आपने टॉप पे आ गया और वो आपका काम हो गया, आपने फिर आपका रिजल्ट आ गया अच्छे से, ऐसा नहीं होता। तो इस पे चीजें करनी पड़ती हैं, टैक्टिक्स हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी ये टैक्टिक्स कैसे काम करती है, क्या इस टैक्टिक्स में करना है।
हमें ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम एसईओ वाले में आ गया, कीवर्ड कैसे प्लान करते हैं, कीवर्ड प्लानर टूल यूज करते हैं, उसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कौन कौन से कीवर्ड हैं इस बिजनेस में। सेकेंडरी कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड, प्राइमरी मतलब हो गया कि आपका मेन कीवर्ड क्या है, सेकेंडरी कीवर्ड क्या हो गया। अब जैसे मेन कीवर्ड है, हम जैसे सपोज दिल्ली में हमारा इंस्टीट्यूट है, तो हमारा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली होगा। सेकेंडरी कीवर्ड हो सकता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली एनसीआर, हम दिल्ली एनसीआर में भी टॉप मतलब पे आना चाहते हैं। तो सेकेंडरी प्राइमरी कीवर्ड इस हम डिस्कस करेंगे, व्हाट अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस कीवर्ड इज एंड व्हाट ब्रांडिंग कीवर्ड इज। दोनों तरह के अलग कीवर्ड हैं, ब्रांड कीवर्ड अलग होता है, बिजनेस कीवर्ड अलग होता है। ब्रांडिंग कीवर्ड हो गया भाई, अब मैकडोनल्ड्स ब्रांड है, ठीक है, तो मैकडोनल्ड्स ब्रांड हो गया, केएफसी ब्रांड हो गया, या जो भी चीजें ब्रांड होगी, तो ब्रांडिंग कीवर्ड अलग हो गई जो ब्रांड के लिए हम यूज करते हैं, कि बिजनेस कीवर्ड्स अलग हो गए। तो धीरे धीरे हम चीजें समझेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। बेस्ट कीवर्ड फॉर प्रमोशन, कीवर्ड मैपिंग विद वेब पेज। एक होता है स्टार्ट ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ होता है एसईओ का पहला पार्ट, मतलब ऑन पेज मतलब जो वेबसाइट के ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, सपोज यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टैग्स, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अभी कुछ चीजें आपको क्लियर समझ में नहीं होगी, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये चीजें हम पढ़ेंगे। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मेटा टैग्स क्या होता है। सपोज मैं अभी एक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली ये सर्च करता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ बस। देखो अब जैसे क्लच है, एजेंसीज, ये डिजिटल मार्केटर्स, मार्केटर्स ये क्या है, वेबसाइट देख रहा हूँ। ठीक है, देखो ये किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की वेबसाइट है। अब इसका अगर मैं कंट्रोल यू बटन दबाऊंगा, तो इसका बैक की जो भी इसकी कोडिंग है वो मुझे दिखाई दे जाएगी। इस कोडिंग से जो रिजल्ट आ रहा है वो ये दिख रहा है हमें। ठीक है, ये हमें वेबसाइट बच्चे डिजाइन आ रही है, फोटो दिखाई दे रहा है हमें, कुछ ये सब चीज दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का कोड कंट्रोल यू डालने से दिखाई देता है, इसके पीछे के कोड से ही। ठीक है, पूरे कोड समझने की जरूरत नहीं है। अब जो डेवलपर होते हैं उनको कोड समझने की जरूरत है, आपको अपने हिसाब से कोड देखनी है। अब जैसे इसमें हम डिस्कस कर रहे थे ना, इसमें जैसे मेटा टैग्स, ठीक है, तो इसमें जैसे कंट्रोल एफ में मेटा मैंने लिखा, मेटा टैग्स का मतलब हो गया मेटा नेम क्या है, रोबोट है, मेटा कैरेक्टर, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, इस पेज का टाइटल क्या है, ये है इस पेज का टाइटल, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। इस पेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्राइब कर रहे हैं पेज के बारे में। फिर कीवर्ड्स है, कैनोनिकल है, गूगल साइट वेरिफिकेशन है, फिर फेसबुक के बारे में दिया गया है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ये क्या क्या मेटा टैग्स, यही मेटा टैग्स की बात हो रही है। जहां जहां मेटा लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये सब मेटा टैग्स जो यहाँ पे बता रहे हैं ना, मेटा टैग्स है, ये मेटा टैग्स क्रिएशन, ये सारी चीजें मेटा है। तो हमें वो ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है ना, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है काम कैसे कर रहा है, इसके अंदर की चीजें हमें ये जानने की जरूरत है कि ये मेटा टैग क्या है, ये क्या होना चाहिए, ये चीजें हम एसईओ के अकॉर्डिंग टू एसईओ ये चीजें हमें जाननी जरूरी है। ये कैसे काम करता है, इसका कोड नहीं है, इसका कोड बना बनाया हुआ आता है, उसको एज इट इज लिखना होता है, इस चीज को हमें देखना होता है इस चीज को। और देखो अब जैसे यहाँ पे मेरे पास देखिए, आपने ये देखा होगा यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन ये क्वेश्चन आ गया कि वेलकम टू अवर वेबसाइट, इफ यू नीड हेल्प सिंपली रिप्लाई टू दिस मैसेज, वी आर ऑनलाइन एंड रेडी टू हेल्प। ठीक है, तो यहाँ से थ्रू हम उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो ये हो गया चैट वाला, चैट वाली हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये चैट वाला काम हो गया कि चैट के थ्रू कोई वेबसाइट पे विजिट करने आया तो चैट के थ्रू बात कर सकता है। ठीक है, या फिर इस पे सीधा कॉल, इस पे क्लिक करने से सीधा कॉल हो जाएगी, इस पे क्लिक करने से सीधा मेल कूपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में है। धीरे धीरे चीजों को समझनी पड़ेगी, तभी आप उसको क्लियर हो पाओगे। तो एसईओ में ये हो गया, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सिर्फ हम पेज के बारे में बात कर रहे हैं। फिर होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज का मतलब क्या होता है कि बाहर से लिंक हम अपनी वेबसाइट को भेज रहे हैं। बाहर से लिंक का भेजने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज मैं मैकडोनल्ड्स नहीं, कुछ भी एक बिजनेस के बारे में बताइए जो थोड़ा सा फेमस है,
कोई भी आप बताइए, मैं अपना दिमाग में, आप बताइए क्या, कौन सा बिजनेस के बारे में बताइए। KFC सर। KFC, ठीक है। KFC, KFC सर्च कर रहा हूँ गूगल पे। ठीक है, देखिए ऑनलाइन वेबसाइट आ गई KFC की, फिर आ गया restaurants.kfc.in, विकीपीडिया आ गया, इजी डाइनर आ गया, जोमेटो आ गया, फिर आपका स्विगी आ गया, KFC.com भी आ गया, Facebook.com आ गया, dineout.co.in आ गया, जस्ट डायल आ गया। तो ये सब KFC के अलावा जितनी वेबसाइट्स हैं वो सब बैकलिंक दे रही है KFC को। जैसे कैसे, अब जैसे मैं डाइन आउट पे गया, इस वेबसाइट पे गया, ठीक है, अब बैकलिंक देने का मतलब कहीं ना कहीं इसका बैकलिंक ये उस वेबसाइट पे इसका लिंक जा रहा है, इसीलिए हमें KFC में दिख रहा है इस चीज के बारे में। तो ये चीज बैकलिंक, ये डाइन आउट से KFC का मतलब क्या है, KFC के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं KFC को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑफ पेज का तरीका एक हो गया। हाँ, लेकिन डाइन आउट मैंने एक तरीका बताया, जरूरी नहीं डाइन आउट में आप अपना लिंक बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो कोई भी वेबसाइट के थ्रू अगर आपकी वेबसाइट पे लिंक आ रहा है, दैट इज नोन एज बैकलिंक। अब बैकलिंक में ऑफ पेज जो होता है, ये ऑफ पेज का बैकलिंक, मतलब यहाँ से अगर हम बैकलिंक दे रहे हैं KFC की वेबसाइट को, तो ये हमारा बैकलिंक हम यहाँ से भेज रहे हैं उनको। ठीक है ना। अब इसमें आते हैं हम, तो ये हो गया आपका ऑफ पेज। तो ये ऑफ पेज बैकलिंक टेक्निक्स है कि अपनी वेबसाइट पे कितने अलग अलग वेबसाइट से आप बैकलिंक भेज सकते हैं। तो उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं, व्हाट इज नो फॉलो, व्हाट इज डू फॉलो बैकलिंक, एक्सटर्नल बैकलिंकिंग क्या होती है, इंटरनल बैकलिंकिंग क्या होती है, डोमेन ऑथोरिटी क्या होती है, डोमेन ऑथोरिटी को इंक्रीज कैसे करते हैं। डोमेन ऑथोरिटी का मतलब ये होता है कि गूगल डोमेन की एक ऑथोरिटी होती है, मतलब कि डोमेन की एक वैल्यू होती है इंटरनेट पे, कोई भी डोमेन की वैल्यू देती है। तो हर एक कंपनी अलग अलग वैल्यू देती है। जैसे मॉज एक कंपनी है, वो डोमेन ऑथोरिटी देती है DA, पेज ऑथोरिटी देती है PA। उसी तरह से मॉज जो Href है, उसका अलग तरीका है मैनेज करने का। सारे जितने भी टूल्स होते हैं ना, सब अलग अलग तरीके होते हैं, उनका अलग अलग तरीका। बस डोमेन ऑथोरिटी ज्यादा फेमस इसलिए कि थोड़ा सा गूगल से मैच करता है। गूगल ने, मतलब गूगल का एक्चुअली नहीं बोल सकते, ये मॉज का है, लेकिन गूगल इसको प्रायोरिटी देता है डोमेन ऑथोरिटी को, DA। तो जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं उन सब का DA 99 है। फेसबुक का आप देख लो, ट्विटर का देख लो, इन सब का DA 99 होता है, क्योंकि ये ऑथोरिटी हो चुकी है। ये जानी मानी वेबसाइट्स में से एक है। लेकिन आपने अभी आज के अपडेट में अपनी वेबसाइट बनाई है, डोमेन उसका खरीदा है, तो उसका डोमेन होगा 1। आपने कुछ नहीं किया, आपका डोमेन जो शुरू होता है 0 से नहीं होता, उसका होता है 1 मिनिमम। तो 1 से कोई चीज 100 तक पहुंच रही है, 100 तो ऐसे जनरली नॉर्मल वेबसाइट्स नहीं जा सकती, बड़ी वेबसाइट्स हैं जो बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं, और वो भी ऐसी नहीं बोल रहा KFC वेबसाइट का भी 100 नहीं होगा, ऐसी वेबसाइट्स का 100 होगा जिसमें रोज हर मिनट अपडेट होता है, वहां पे होगा। अब जैसे एग्जांपल गूगल का होगा, आपका फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ज्यादातर का 90+ ही होगा, क्योंकि उसमें रेगुलर अपडेट्स चलते रहते हैं, और खासकर ट्विटर और इन सब का तो 99 है। तो वो सब डोमेन ऑथोरिटी का है। अब अपनी डोमेन ऑथोरिटी जो है, हमारी डोमेन ऑथोरिटी तो 1 से शुरू होगी, तो हम कैसे इसको इंक्रीज करते हैं, ये चीज पढ़ेंगे उसके बारे में। ऑफ पेज में पेज सर ऑथोरिटी क्या। हाँ बोलिए। सर व्हाट इज डोमेन? सॉरी, डोमेन के बारे में मुझे सही से नहीं पता। डोमेन का मतलब जैसे कि जैसे ये KFC की मैं अगर बात करूं, जैसे ये online.kfc.com जो आ रहा है खुला हुआ, देखना, ये डोमेन है। ओके सर। ये डोमेन है आपका। कोई भी वेबसाइट आपने बना ली, आपने अपने लोकल होस्ट पे बना ली, उसके लिए आपको एक दो चीजें चाहिए होती है, एक होती है होस्टिंग और होता है दूसरा डोमेन। डोमेन और होस्टिंग खरीदने के बाद ही आपकी वेबसाइट लोगों को दिखाई देगी। होस्टिंग क्या हो गया, वेबसाइट मतलब ऑनलाइन सर्वर में आपका, एक तरह से समझ लीजिए होस्टिंग का मतलब सर्वर ही समझ लीजिए। सर्वर के अंदर स्पेस, आपने स्पेस ले लिया सर्वर के अंदर, ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क होती है ना, वैसे ही आपने वहां पे स्पेस ले लिया होस्टिंग में। और दूसरी चीज, जैसे online.kfc.com है, वैसे ये kfc.co.in होना चाहिए, ऑनलाइन
ये इसका दूसरा पेज, ये सब डोमेन इसको बोलते हैं। kfc.co.in खुलना चाहिए था, तो ये kfc.co.in उसका बताता हूं। ऑनलाइन ही खुल रहा है। चलो मतलब मैं कहने वाला ये जो है ये डोमेन, ठीक है, ये http के बाद जो है ये डोमेन है kfc.co.in है। वैसे अगर हम सिंपल पे ले जाओ, जैसे हम तैयारी.com की, तो ये तैयारी.com जो है दिस इज डोमेन, ठीक है, तैयारी एग्जाम की .com ये डोमेन है। और ये वेबसाइट जो है होस्टेड है कहीं पे, उस स्पेस है वहां पे इस वेबसाइट को हम रखते हैं वहां पे। जैसे हार्ड डिस्क में सामान रखते हैं ना हम, जैसे कोई भी इमेज रखते हैं या कोई भी फाइल रखते हैं हार्ड डिस्क में, फोन में रखते हैं, उसमें भी हार्ड डिस्क लगी रहती है। तो उसी तरह से जो वेबसाइट है उसका हार्ड डिस्क समझ लीजिए होस्टेड, सर्वर पे हार्ड डिस्क रखी हुई है, वहां पे से एक्सेस करते हैं। जब भी हम तैयारी.com या कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, हम सीधा उस हार्ड डिस्क को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो वो डोमेन के थ्रू है, मतलब कि डोमेन का आपका नाम क्या है, मतलब किस एड्रेस से आना चाहते हैं, और वो होस्टिंग जो है वो बैकएंड में रहती है, वो दिखाई नहीं देती है। क्लियर है शोएब? यस सर, थैंक यू सर। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आप क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे। अभी नेक्स्ट क्लास हम क्लियर कर लेंगे डोमेन और होस्टिंग के ऊपर, पूरा सेशन होगा हमारे पास समझने के लिए, मतलब मेरे को समझाने के लिए। ऑफ पेज एसईओ में और भी है, लोकल एसईओ, ये बहुत आजकल मार्केट में चल रहा है, ये आज से 2-3 साल पहले ज्यादा नहीं चल रहा था। लोकल एसईओ का मतलब वही हुआ, कार नियर मी शोरूम में खुल रहा है, ये जो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, ये लोकल एसईओ की वजह से दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको, कार शोरूम नियर मी, मैंने सर्च किया, ये लोकल एसईओ की वजह से दिख रहा है, जिसमें से ये ऐड है, ये वाला पार्ट ऐड चल रहा है, ये जी सर। तीनों लोकल एसईओ की वजह से दिख रहा है। किसी ने कराई है, अब जैसे ये टॉप पे आ रहा है, इसने नहीं कराई है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा किस पे कर रखा है। सबसे बेस्ट होता है जैसे हमारा, जैसे रेस्टोरेंट्स नियर मी, जो लोग, और ये लोकल एसईओ फायदेमंद उसके लिए होता है जिसका बिजनेस 5 या 10 किलोमीटर के रेडियस में चलता है, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गया। ये तो गूगल माई बिजनेस के थ्रू होता है ना सर? जी जी, यस यस यस, गूगल में बिजनेस के थ्रू होता है वो। उसमें भी अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं लोकल एसईओ के, बट लोकल एसईओ के लिए आपको गूगल माई बिजनेस एक्टिवेटेड होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स नियर मी, ये हंगेजी आ रहा है, द सलाडियन आ रहा है, द कॉर्नर पिट स्टॉप आ रहा है, तो इन सब ने कहीं ना कहीं ये चीज पे फोकस कर रखा है, ठीक है। और लेकिन हाँ, जैसे ये खुल रहा है तो इसका मतलब बिजनेस, इनका खुद का बिजनेस, जो गूगल में बिजनेस होगा ना, जीएमबी बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, तो जीएमबी, ये चीज जीएमबी के थ्रू आ रही है। अगर आपका गूगल में बिजनेस नहीं होगा तो यह चीज दिखाई नहीं देगी। तो आपका बिजनेस, गूगल में बिजनेस एक्टिवेटेड होना चाहिए लोकल एसईओ में, तभी आप लोकल एसईओ कर पाएंगे उसको। तो इसके अलावा भी कोई टूल्स वगैरह होते हैं जैसे गूगल माई बिजनेस के अलावा ना जा करके? गूगल में सिर्फ बिजनेस यही वाला हो सकता है। अगर आप बोलेंगे हाँ, तो बिंग का भी एक टूल आता है, बिंग माई प्लेसेस का। जैसे मैं बिंग में खोलूंगा, तब दिखाता हूँ। बिंग में जैसे मैंने खोल लिया रेस्टोरेंट्स नियर मी, देखो इसमें अलग दिख रहा है, देखो इसका तरीका अलग है आपको देखने का। इसमें मैप दिख गया, ये देखो मैप दिख गया, अब इसमें ऐसे ऐसे करके दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना जी। तो अब इशू ये है कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग में कोई सर्च करता ही नहीं है जनरली। कौन सर्च करता है? गूगल पे ही सर्च करते हैं। सबके पास एंड्रॉइड है, ज्यादातर के पास एंड्रॉइड है, और किसी के पास आईफोन भी होगा, उनका डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो गूगल है। और बिंग में 2-3 बार यूज करके ना आपको भी लगेगा यार बिंग वैसा रिजल्ट नहीं दे पा, जो हमारी आदत है जिस तरह, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जनरली बिंग का यूज ज्यादातर होता है यूएस में, तो उसके थ्रू काम चल जाता है उनका। अब इसमें चीजें वैसे ही आ रही हैं। अब देखो इसमें ये एक साथ सारे एड्रेस दिखा रहा है, उसमें क्या दिखा रहा था, उसमें 3 ही एड्रेस दिखा रहा था। तो इसमें जो लड़ाई है लोकल एसईओ की, वो लड़ाई है आपकी इन 3 जगह की, इस 3 जगह की लड़ाई है। मतलब लड़ाई इन द सेंस कि इन 3 पोजीशन की मारामारी है, इस पोजीशन पे कौन आएगा। हाँ, कंपटीशन कौन आएगा इस पोजीशन पे, और
जैसे हमारे टॉप 10 में, फर्स्ट पेज में टॉप 10 में कौन आएगा, फर्स्ट 3 में कौन आएगा, इन 3 में कौन आएगा, ये लोकल नॉर्मल एसईओ का रिजल्ट। नॉर्मल एसईओ का मतलब टारगेट होता है हमारा फर्स्ट पेज पे आना, फर्स्ट पेज पे आ गया तो हमें फर्स्ट थर्ड में 3 में आना होगा, और इसका टारगेट होता है कि इन तीनों में आना, क्योंकि हमारे पास एसईओ के लिए हमारे पास पूरा एक पेज है जिसमें 10 रिजल्ट आते हैं, लेकिन लोकल एसईओ के लिए हमारे पास सिर्फ 3 है, 3 ही जगह है, उसमें से हमें टॉप पे आना है। ठीक है, तो लोकल एसईओ भी अपने, हाँ लोकल एसईओ भी अपने आप में है, एसईओ टाइप का ही है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हैं इसमें, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ जैसे मैंने कहा उसके लिए वेबसाइट भी हो, वेबसाइट होगी ज्यादा सही है, उसके लिए आपका गूगल माई बिजनेस होना बहुत जरूरी है, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट कर रहा है इंडिया में खासकर। मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा कि क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं, क्यों दिक्कतें हो रही हैं, कैसे उसको ठीक ठाक करना है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे जब ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लोकल एसईओ का पूरा एक टॉपिक ही है, कैसे हाँ बोलिए। तो इसको कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे कि कोई कंप्यूटर है साथ में, हम सर्च कर रहे हैं नियर बाई मी, अगर हम किसी का एसईओ कर रहे हैं गूगल माई बिजनेस में, तो उसको तो उसमें कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे हमने रेस्टोरेंट डाला है कि कितने कंप्यूटर है, क्या कीवर्ड यूज किया है उन्होंने, कैसे क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है? हाँ वो प्रोसेस है, ऑब्वियसली बात है, जब हम लोकल एसईओ पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, प्रोसेस है उसके लिए, उसको भी जानने का तरीका है, उसके भी कुछ फ्री टूल्स हैं, कुछ पेड टूल्स हैं, जो चीज़ उससे पता लगा सकते हैं क्या क्या हो रहा है। पर ये ध्यान रखना है आपको कि लोकल एसईओ जनरली वही कराते हैं जिनका जो बिजनेस है वो लोकली चलता है, नेशनल लेवल पे कुछ नहीं है, ना ही पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब दिल्ली में कितने हजारों रेस्टोरेंट होंगे, अब सीपी में है तो सीपी के रेस्टोरेंट्स के टारगेट करेंगे, सीपी के रेस्टोरेंट्स पे तो जाएंगे आप, क्योंकि आप वहां पर है, नियर में इसलिए सर्च कर रहे हैं क्योंकि मेरे नियर में कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है, तो सीपी वाले जितने भी रेस्टोरेंट्स है सब लोकल एसईओ करा रहे हैं। तो जैसे एसईओ में एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे एसईओ लोकल जैसे 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के अंडर में करते हैं इसमें? नहीं 15 किलोमीटर की बात नहीं है, अंडर की कोई बात नहीं, आप किस जगह पर हैं, आपका डिवाइस किस जगह पे है, ये मैटर करता है। ओके, अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, ठीक है, और आप नोएडा के सर्च कर रहे हैं बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन नोएडा, तो नोएडा के हिसाब से रिजल्ट दिखाएगा आपको। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो उस समय आपका लास्ट लोकेशन जो होगा आपके मोबाइल का, उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। ओके ओके, दोनों चीजें हैं। आप यहाँ से बैठ के न्यूयॉर्क का भी देख सकते हैं, आप जैसे मैं यहाँ पे बैठ के रेस्टोरेंट्स रुको दिखाता हूँ, तो लाइव में दिखाने में इसलिए होता है ना कि चीजें के समझने में क्लियर होती है। बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन न्यूयॉर्क, देखो ये तो 4 ऐड ही चल रहा है इसमें अभी, ये 4 ऐड चल रहे हैं ये 3 देखो, इंडियन एसेंट के नाम से 2000, न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट, ऑलिव बार एंड किचन, ये सब ऐड चला रहे हैं। और अगर थोड़ा और क्लिक, मतलब सब लोग लोकल एसईओ कर रहे हैं, और थोड़ा क्लिक करेंगे, देखिए इसमें 2 ऐड चल रहे हैं, तो ये बहुत ही टॉप कीवर्ड हो गया है। ये सारे तो दिल्ली के दिखा रहा है, एक मिनट, दिल्ली का क्यों दिखा रहा है, न्यूयॉर्क सिटी, ये न्यूयॉर्क टारगेट कर रहा है, न्यूयॉर्क सिटी ले नहीं रहा है। नोएडा हम लेते हैं, हाँ ये नोएडा के रेस्टोरेंट्स को दिखा रहा है, मतलब हमारा बहुत ज्यादा दूर का हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन वो जो आप देख रहे थे ना, बेस्ट रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क, ये जो देख रहे हो आप, जो देख रहे हो ना, ये सारे यूएस की है, ये सारे जो ऐड चल रहे हैं ना, ये यूएस की चल रहे हैं। देखो ये नंबर देखो, ये नंबर इंडिया का नहीं है, +1 है ना, ये सारे सर, ये कीवर्ड की, हाँ बोलिए। सर ये जो ऐड चलते हैं इसका लिमिटेड पीरियड होगा ना, मतलब ये ऐड चलाने का असर नहीं है कि हमेशा के लिए चलता होगा? डिपेंड करता है भाई, आपने अगर ऐड चला रखा है दुनिया भर के लिए, अब देखो लॉजिकली ये ऐड हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में नहीं, फॉरेन में बैठे हैं। अब इन्होंने क्या कर रखा होगा ना, बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन न्यूयॉर्क, जो भी सर्च कर रहा है उनको दिखाई दे, लेकिन अभी तो हम इंडिया में है ना,
तो हमें तो ये हम इसमें अभी जी मैंने सर, इसमें लेकिन मेरा कहना मतलब जो एड लिखा रहता है, मतलब ऐड चल रहा है, तो ये जो ऐड चल रहा है इसका एक टाइम होता होगा ना, कितने टाइम के लिए आप ले रहे हैं, या फिर हमेशा के लिए चलता रहता है ये? ये आपके पास पैसा है खर्च करने के लिए, आप ऐड चला दीजिए, 365 दिन चलाइए, क्या दिक्कत है। और ये जो ऐड है और बाकी लोकल जो रहता है इसके नीचे, ऐड के नीचे वाला, उसमें इसमें डिफरेंट क्या होता है? नहीं, ये तो वेबसाइट का ऐड हो गया सीधा, इससे तो सीधा क्लिक करके वेबसाइट पे जाएंगे। कोई मतलब वहां पे क्या है, वहां के अकॉर्डिंग जो सर्च कर रहा है, तो ये वेबसाइट का ऐड दिख रहा है। यहाँ पे जी सर। लोकली तो वहाँ का न्यूयॉर्क का रेस्टोरेंट दिख नहीं रहा है। न्यूयॉर्क का रेस्टोरेंट देखने के लिए हमें, अभी मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन चलो अभी नहीं करूंगा, फिर तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा लग जाएगा, सर क्या कर रहे हैं अभी। टूल्स के थ्रू, यहाँ पे सेटिंग्स के थ्रू मैं ये कर दूंगा, तो ये पता चल जाएगा। तो जैसे दिखाई देता हूँ मैं आप लोगों को, सर्च सेटिंग में गए, यहाँ पे मैंने टारगेट किया, यहाँ पे मैंने ये रीजन को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने टारगेट कर लिया यूएस। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि मैं समझाऊंगा आपको ये कैसे होता है। अब दिखा रहा है, देखो दिख रहा है, अब यूएस का, अब न्यूयॉर्क का दिखा रहा है। यस सर। Okay. तो हमने क्या किया इसमें, हमारे दिमाग से निकल गया था वो न्यूयॉर्क। हमने ये जब लोकेशन कर दी ना मैंने इसकी, गूगल की, वो लोकेशन कर दी यूएस की। अब यूएस में बेस्ट रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क में दिख रहा है, ये तीनों देखो, तीनों रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। हो गया, टूल्स, अलग अलग तरह के टूल्स सीखेंगे हम, ठीक है ना। फिर गूगल का वेबमास्टर का टूल होता है, वो अलग टूल है। और हमारा क्या बोलते हैं, ये वेबसाइट टूल हो गया, आपका गूगल एनालिटिक्स का टूल हो गया। एनालिटिक्स का टूल बहुत काम आता है कि आपको पता चले कितने लोग आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं। ये एनालिटिक्स का टूल और वेबमास्टर का टूल बहुत हेल्पफुल होता है आपके एसईओ के लिए। मतलब एसईओ के लिए आपको गूगल वेबमास्टर का टूल आपके पास तो रहना ही चाहिए, ठीक है। और मॉनिटर करने के लिए भाई कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, ये चीज बहुत फायदेमंद होती है। कोई भी मान ली सपोज आपने ऐड चलाया एक हफ्ते, आपने रिजल्ट डालना चाहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितने तरह के लोग आए, कहाँ के लोग आए, कौन से इंटरेस्ट वाले लोग आए, कौन से पेज को विजिट किया उन्होंने, ये सारी पता चलती है आपको गूगल एनालिटिक्स से, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा इसको ना, तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। अभी मैं चीजें लाइव नहीं दिखा रहा हूँ, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें, तो उसमें लाइव दिखाऊंगा, किसी का गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट दिखाऊंगा कि कैसे वो वर्क कर रहा है, अभी लाइव कितना है, कितने लोग लाइव पे चल रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स में गोल को क्रिएट करते हैं कि आपका गोल पूरा हो जाए। सपोज आप ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप सामान बेचते हैं, तो उसको एक गोल टारगेट कर लिया कि सपोज इस सामान पे जाए, वो कार्ट पे जाए, थैंक यू मैसेज आए, तो आपका एक गोल पूरा हो गया। गोल पूरा होने का मतलब वो गोल फुटबॉल वाला गोल नहीं है, गोल मतलब आपका लाइफ गोल जैसा होता है ना, वैसे उस वेबसाइट का गोल पूरा हो गया। किसी वेबसाइट का गोल क्या है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, बहुत टाइम है इस चीज को डिस्कस करने के लिए। गूगल एडवर्ड्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, आ गया, इसको करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी एड्स देख रहे थे ना लिखा हुआ, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये एड जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये गूगल एड्स के थ्रू आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना गूगल एडवर्ड्स, गूगल एड्स के थ्रू आ रहा है ये जो लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पीपीसी। गूगल एड जनरली पीपीसी भी कहलाता है, पे पर क्लिक। तो ये जितनी बार क्लिक करिएगा उतना बार पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार। अब ये भी हो सकता है कि पहले क्या होता था, जैसे मैं कॉम्पिटिटर हूँ, हमारे सपोज हमारी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, मैं कॉम्पिटिटर हूँ, मैंने एक को बोल दिया है भाई कि जो भी आए क्लिक कर उसको, वो क्लिक कर दो, इसका पैसा खर्च हो जाएगा। अभी मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ना, तो इनका पैसा कट जाएगा, होगा 40-50 रुपए, जितना भी इनका बजट होगा। इसकी बोली लगती है, इस सिचुएशन कहाँ किस जगह आपको आना, उसके वो है, ऑक्शन होता है। तो उसके ऑक्शन के हिसाब से ये है कि वो किस बोली के हिसाब से एक क्लिक खर्च दिए, उस हिसाब
दिखता है, ऊपर दिखता है, ये नीचे दिखेगा, ये सर सेकंड पेज पे आपकी भी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी क्लियर? हेलो अभी आवाज आ रही है मेरी? सर, ब्रेक हो रही है बीच में। अभी ठीक है? जी हाँ, तो देखो आप इसमें ऐड आ रहा है ना, ये ऐड पे क्लिक कर दिया मैंने, तो इस पे ऐसा नहीं है, मान लीजिए मैं 2 बार क्लिक कर दूंगा या मैं 100 बार इसको क्लिक करूंगा, तो ऐसा नहीं है उस कंपनी के 100 बार पैसे नहीं कटेंगे। गूगल भी चला के इस मामले में वो क्या करेगा, मैंने 1 बार क्लिक कर लिया, 2 बार क्लिक कर लिया, तीसरी बार क्लिक करेगा, गूगल को समझ में आ जाएगा ये जानबूझ के काम कर रहा है, तो इसलिए वो मेरे क्लिक का पैसा नहीं काटेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार क्लिक कर चुका हूँ मैं अपने लिंक से या अपने आईपी से, वो आईपी को ट्रैक कर लेगा, फिर उसके बाद उस क्लिक का वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ बताओ। सर, एक इसका टाइम लिमिट तो रहता है 24 आवर के अंदर, अगर आप 24 घंटे में क्लिक कर रहे हो तो उसका कोई पैसा नहीं कटता। उसके बाद अगर नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर तो उसके बाद आप क्लिक करते हो तो उसका पैसा कटेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जब भी आपने ऐड चलाया है, आपका ऐड पे डिपेंड करता है ना, कि दो ऐड बहुत तरह के होते हैं। आपने ऐड चलाया है, आपने ऐड चला के कर दिया, आपने जैसे ऐड चल गया, अब मैं क्लिक कर दूं उस पे, आपका पैसा कटेगा ही। ठीक है। करता है, आपका पैसा तब नहीं कटेगा उस केस में जब आपने सपोज कोई टारगेट पूरा करने के लिए ऐड चलाया हो। मैं टारगेट पूरा करने के लिए मतलब कोई चीज कि सपोज ये रिजल्ट आएगा तभी आपका पैसा कटेगा, मान लो वो ये चीज खरीद ले तभी आपका पैसा कटे, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो वो चीज डिपेंड करती है अपने अपने, तो जब हम पढ़ेंगे उस चीज को तब हम क्लियर कर लेंगे कि किस तरह के एड्स चलते हैं, क्या चलता है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है 24 घंटे के बाद आपका ऐड लाइव हुआ, किसी ने क्लिक कर दिया उस ऐड पे, वो कट जाएगा पैसा। ठीक है, अब उसका रिजल्ट आपको आया नहीं आया इससे कोई मतलब नहीं है। गूगल एडवर्ड्स, टाइप ऑफ एक्सटेंशन एड्स, ये सारे एड्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक होता है, सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट होता है, ये सारी चीजें हैं। रीमार्केटिंग जो मैंने बताया था, आप लोग बोले थे ना कि एक बार फेसबुक अमेजोन पे चले गए, फ्लिपकार्ट पे चले गए, उसके बाद कहीं पे भी जाते हैं तो वो दिखता है, वो ये रीमार्केटिंग ऐड है। रीमार्केटिंग ऐड होता है, उसको रीमार्केटिंग ऐड कहते हैं। तो रीमार्केटिंग ऐड के थ्रू जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग होता है। ईमेल मार्केटिंग मतलब आपके मेल पे बहुत सारी मेल्स आती रहती है, तो उसमें कुछ मार्केटिंग की मेल्स भी होती है, आपको ध्यान नहीं होता है, वो चीज़ मार्केटिंग के थ्रू आती है। तो ये भी एक तरीका है डिजिटल मार्केटिंग का। जैसे आप ऐड के थ्रू काम करते हैं, वही चीज़ मार्केटिंग के थ्रू करते हैं, रिजल्ट वही देना है कि आपको लीड मिलेगी, लेकिन मेल के थ्रू आ रही है और एक डायरेक्ट ऐड के थ्रू आ रही है। ये भी पढ़ेंगे उसके बारे में। ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के हिसाब से देखा जाए तो। कंटेंट मार्केटिंग, अगर आप कंटेंट अच्छा नहीं लिखेंगे तो कोई आपको पढ़ेगा नहीं, तो इसलिए कोई आपकी वेबसाइट पर आएगा नहीं या कोई चीज आएगा नहीं, तो इसलिए कंटेंट मार्केटिंग बहुत मतलब फैक्टर होता है इसमें। कंटेंट राइटर की जो आप काम देखते हैं ना आजकल, कंटेंट राइटर इसके लिए वैल्यूबल है, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो कंटेंट की बहुत जरूरत पड़ेगी, ब्लॉगिंग की जरूरत पड़ेगी। ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, मतलब सपोज कोई कंपनी है जिसका रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है, जिस किसी कंपनी की, तो उनको अपना रेपुटेशन ठीक कराना है, तो वो भी आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बीच बीच में होता रहता है ना, किसी की बहुत डाउन हो गई, वैल्यू डाउन हो गई, जैसे पीछे पीछे मैगी की डाउन हो गई थी, आपने सुना होगा, लोग बोल रहे थे कि मैगी का जो सामान है बिकता है, वो सब सामान और जो खाने का जो मैगी वाला जो चीजें हैं वो बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, इसके अंदर लेड है, बहुत सारी, तो उन्होंने भी अपना ORM करवाया जिससे कि उनकी रेपुटेशन फिर से ठीक हो जाए। तो ये जनरली उसके लिए लोग कराते हैं जो जिनकी रेपुटेशन खराब हो जाती है, जिनके बारे में लोग सिर्फ बुरा ही बुरा कह रहे हैं, पॉजिटिव इमेज उनको ठीक करनी है। तो ये देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो उसी की चार चीज़ों के बारे में बात हो रही है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वही फेसबुक हो गया, जितनी इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सब सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। इसके थ्रू हम लोग लीड जनरेट करते हैं, तो उस पर हमारी मार्केटिंग होती है। कोई भी गूगल में सर्च करता है, फेसबुक पेज पे गया, इंस्टाग्राम पेज पे गया, तो उस पर चीज़ें होती हैं। फेसबुक की मार्केटिंग अलग होती है, फेसबुक पे ऐड भी चलते हैं, जैसे गूगल पे ऐड दिखते हैं वैसे फेसबुक पे भी ऐड होते हैं, उसी तरह लिंक्डइन पे भी ऐड होते हैं, उसी तरह ट्विटर पे भी ऐड होते हैं। मतलब पेड भी होते हैं, फ्री में भी काम कर सकते हो, लेकिन फ्री में ऐड नहीं दिखाई देगा, पे करने से आपको ऐड दिखाई देगा। यूट्यूब की मार्केटिंग होती है, आपने देखा होगा यूट्यूब में इतने सारे मिलियन बनाते हैं, कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं। मतलब मिलियन फॉलोअर्स का मतलब ये हो गया कि इतने सारे लोग आपको विजिट करेंगे तो उसमें ऐड दिखता होगा, उस ऐड के जरिए पैसा मिलता है उस चैनल को। तो
आप जैसे फ्रीलांसिंग में अगर आप यूट्यूब चैनल अपना खोलना चाहते हैं तो ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको निश निश का मतलब हो गया कि चीज पकड़नी पड़ेगी कि किस चीज पे आप काम करें। जैसे आप फोटोग्राफी की वीडियोस बनाएंगे तो फोटोग्राफी की वीडियोस बनाएंगे, या खाने की वीडियो बनाएंगे खाने की वीडियो बनाएंगे। मतलब एक चीज पहले से आप चूज कर लीजिए कि किसके वीडियोस मार्केट में कम है या लोग उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो उसका आप यूट्यूब चैनल खोल लीजिए और धीरे धीरे इस पर वीडियोस करते रहिए, ग्रो होते रहेंगे, चीजें और पता चलती जाएंगी। तो इसके ठीक है, कीवर्ड को कैसे सर डिफाइन करेंगे हम यूट्यूब के? यूट्यूब के कीवर्ड को जैसे एसईओ का कीवर्ड है वैसे यूट्यूब का भी कीवर्ड है। अब जैसे हम यूट्यूब भी खोलें, यूट्यूब में गए, जैसे यूट्यूब में गए तो यूट्यूब जैसे गूगल का अपना एसईओ हो गया, यूट्यूब का भी एक SEO होता है। अब जैसे यूट्यूब में हमने बोला कि बेस्ट नहीं पालक पनीर रेसिपी, देखो अपने आप लिखा हुआ आ रहा है ना इसमें, पालक पनीर डाल दिया रेसिपी आने लगी। अब तुमको क्या चाहिए, पालक पनीर की सब्जी चाहिए, पालक पनीर की रेसिपी चाहिए, पालक पनीर कैसे बनता है, ये कीवर्ड है, पालक पनीर कैसे बनता है। अब देखो पहला वाला जो आया, घर में बनाए होटल जैसे लाजवाब पालक पनीर, 3.5 मिलियन व्यूज है 2 साल पहले। फिर 1.5 मिलियन व्यूज है, 926 व्यू है बस 2 दिन पहले आया है ये 8 महीने पहले आया है। तो ये सब भी एसईओ की वजह से ऊपर नीचे आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये चैनल का नेम रखते हैं, जैसे कि कोई सेम सिमिलर हो जाते हैं कई बार, तो उस चीज में चेंजिंग कैसे है? मतलब ये कि कैसे पता चलेगा कि ये ऑलरेडी है? जैसे एक नाम से मैंने कोई सर्च किया तो हजारों निकल आएगा उस नाम से। बिल्कुल हजारों आएगा। बिल्कुल। तो उस चीज को कैसे डिफाइन करेगा कि मतलब ये अलग से कोई डिफरेंट देखे कि इस नाम से नहीं है, कि कोई भी चेंज करके? देखो ऐसा कुछ है नहीं योगेश, ऐसा कोई भी चीज नहीं है आपका यूट्यूब में या गूगल में किसी का कोई चीज रिजल्ट ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई, हाँ कुछ अजीबोगरीब चीज ढूंढ लो, कोई सर्च ही नहीं करता है तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही नहीं। आप लोग के लिए बेनिफिट ये है, अब जैसे फोटोग्राफी कैसे करें मैं लिखता हूँ, फोटोग्राफी टिप्स फॉर बिगिनर्स। ये मतलब फोटोग्राफी के साथ ये ज्यादा लोग करते हैं। देखिए फोटोग्राफी लोगो कैसे बनाए, फोटोग्राफी लोगो कैसे बनाए मैंने कर दिया, अलग वीडियोस आ गए देखो, है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह की वीडियो, वो तो जब हम देखेंगे डिस्कस करेंगे इस बारे में तो मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा ना कि लिस्ट कैसे चीजें करनी है। तो इसी तरह से ब्लॉग भी, वेबसाइट जब बनाएंगे तो ब्लॉगिंग करने के लिए भी आपको ऐसी लिस्ट पकड़ना पड़ेगा किस चीज की ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। क्रिकेट की ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, या खाने की ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, या बिजनेस टिप्स की ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। यूट्यूब में पेड एडवर्टाइजिंग भी होता है। गूगल एडसेंस, गूगल एडसेंस का मतलब हो गया कोई भी आप ब्लॉग पे जाइए, वेबसाइट पे, उस पे आप आपको ऐड दिखाई देता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे स्कूप, देखो ये देखो यहाँ दिख रहा है ना एडवर्टीजमेंट, ये ऐड है, देखो नेटफ्लिक्स का ऐड आ रहा है ना, ये एडवर्टीजमेंट है, देखो लिख रहा है ना। तो ये इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट पे जो ऐड दिख रही है ना, तो आपने वेबसाइट का स्पेस को गूगल को दे दिया। गूगल की तरह और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, ये वाला स्पेस आपने गूगल को दे दिया या उस कंपनी को दे दिया कि उस कंपनी को ये वाला ऐड दिखाई दे रहा है, तो ये आपके रेंट पे, ये वाला उस कंपनी ने ये वाला रेंट पे ले लिया, आपने ये वाली जगह उसने, तो अब ये वाला रेंट पे ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, जितने लोग उसको देखेंगे वो आपको पैसे देगा। ठीक है, तो ये गूगल एडसेंस इसको बोलते हैं, जिसके थ्रू आपको पैसे मिलते हैं। आपने वो रेंट पे जगह दे रखी है और उस पर ऐड आएगा तो वो पैसे आपको मिलेंगे। गूगल ऐड का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, अब आपको कहाँ ऐड दिखाना है दिखाइए और पैसे आप गूगल को देंगे, तो उसी गूगल उसी पैसे से कुछ पैसे आपको दे देता है। समझ में आई बात? योगेश, कार्तिक, समझ में आई बात आपको? ये पब्लिशर हो गए वो पब्लिशर, राइट, पब्लिशर जो हो गए वो पब्लिश कर रहे हैं, उसके लिए आपने पैसे दे दिए। अब जो पब्लिश कर रहा है अपनी वेबसाइट पे उसको पैसे देने पड़ेंगे ना, वो गूगल देगा। बिल्कुल, वो
उसमें जो एडवर्टाइजर हो कंपनी गया। के थ्रू कर रहे हैं, हाँ जो भी कंपनी है वो देगी आपको पैसे, क्योंकि आपने अपना रेंट दे दिया, अपना जगह दे दी है ना रेंट पे। इस तरह से समझिए ना, रेंट जो देते हैं आप, किसी को रेंट देते हैं, घर या ऑफिस रेंट पे देते हैं, तो उसको रेंट पे देने के लिए वो पैसे देते हैं ना आपको, क्योंकि आप उनकी जगह यूज कर रहे हैं। नाम तो आपकी, इसी तरह ये वेबसाइट जो है स्कूप इनकी कंपनी की है, तो ये अपनी जगह दे रखी है इन्होंने। इसी तरह और भी ऐड आएगा बीच में, यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है, यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है। जितना एडवर्टीजमेंट दिखता जाएगा उतना हमें ऐड दिखता जाएगा। तो इसमें भी कोई बिडिंग होती है कैसे सर, एक फिक्स अमाउंट होती है कि हाँ भाई? हाँ, इसमें डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट पे विजिट्स कितनी है। ओके। और आपकी वेबसाइट कहाँ पे है, यूएस में, यूके के टारगेट को कर रही है, यूएस के और यूके के टारगेट पे ज्यादा पैसे मिलते हैं एक पे। ओके। वो मैं बताऊंगा सारी चीजें, वो कैसे कैसे क्या होती है। हेलो। बस लास्ट क्लास आज की हेलो। हो गया, लोकल एसईओ, गूगल एडसेंस की बात कर ली, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ऑनलाइन, फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल एडसेंस। ई वेबसाइट हमने पहले डिस्कस की, इनसे हम बताएंगे ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे चलानी है, ई कॉमर्स का ऐड कैसे चलाना है, और ई कॉमर्स का एसईओ कैसे करना है। क्योंकि ई कॉमर्स का ऐड और एसईओ थोड़ा सा अलग होता है, चीज वही है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए। ठीक है, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, ई शॉपिंग कार्ट, ये सारी चीजें हम देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे, और ये हमारा पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, एनी डाउट्स? तो इसके लिए सर एक वन पेज वेबसाइट ही काफी है? जैसे कुछ प्रोडक्ट ही हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं, कि आपके पास 10 या 12 या 15-20 प्रोडक्ट को ही लेके आप आगे बढ़ रहे हो? तो लेकिन देखो 10-12 प्रोडक्ट में दिक्कत ये है, आप चलाना सीख सकते हो, लेकिन उससे आप ज्यादा सेल की उम्मीद मत करो। क्योंकि आप खुद समझो ना, आप हमेशा जब भी चेक करो, कभी कुछ बनाओ ना, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट या कुछ भी, आप सोचो क्या आप उस वेबसाइट से खरीदोगे सामान। बट डिपेंड करता है सर कि क्या प्रोडक्ट, क्या क्वालिटी दे रहा है, क्या प्राइस, मेन तो प्राइस और क्वालिटी। बिल्कुल, लेकिन मेरे हिसाब से प्रोडक्ट ना ज्यादा होना चाहिए, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके। तो नहीं, जैसे अब सपोज एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसमें कम प्रोडक्ट में कैसे काम चल जाएगा। जैसे सपोज आप ग्रीन टी बेचते हैं, उसके प्रोडक्ट तो कम ही होंगे, बिल्कुल, तो उसको आप बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप, हाँ जैसे जूता बेच रहे हैं, तो जूते में अगर आप 20 लेके आते हैं, कोई नहीं खरीदने वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक। आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीजें, जूता बेचना चाह रहे हैं या साड़ी बेचते हैं चाहते हैं, या तो आपके पास नंबर ऑफ होने चाहिए भाई। कोई अगर सर्च करने आ रहा है, आप अब खुद ही सोचो, जूता हो कितना सोचते हो यार, टी शर्ट खरीदते हो या शर्ट खरीदते हो, कितना चेक करते हो। ऐसा नहीं पसंद आ गया ले लिया, आप देखते हो भाई इतने रिजल्ट आ रहे हैं, कम से कम 20 देखोगे तब जाके एक सेलेक्ट करते हो। तो आप किसी भी वेबसाइट में जाओगे, बोले अरे यार इसमें तो 20 ही कंटेंट है, बस प्रोडक्ट शो कर रहा है, इसके पास मतलब अच्छा कलेक्शन नहीं है, यही होगा दिमाग में आता है। तो उस चीज को स्टार्ट करने के लिए आप प्रोफेशनली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट शुरू होने चाहिए। आप डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर कि प्रोडक्ट की खपत कैसे होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रीन टी या ये कॉफी बेचते हैं या कुछ ऐसा बेचते हैं, तो उसके लिए कम में भी चल जाएगा। आपके पास 5 ही प्रोडक्ट होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसका आप साइज बढ़ा दीजिए, 500 ग्राम में बिकता है, 250 ग्राम बिकता है, 1 केजी का है, 5 केजी का लेना चाहते हैं, उसी तरह से बोल दीजिए। प्रोडक्ट तो एक कम ही रहेगा उसका। हाँ, तो उस तरह की प्रोडक्ट्स बहुत कम है जिसके कम लोगों को रिक्वायरमेंट है, मतलब कम देखने से खरीद ली, उसमें ज्यादा सर्चेज नहीं करें, क्योंकि ज्यादातर लोग यही करते हैं, सर्चेज ज्यादा करते हैं कोई भी चीज खरीदने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज एक लॉजिक ही बता रहा हूँ आपको। मैं बोल दूंगा जूते का आप शुरू कर तो 10, कभी आपके पास सेल ही नहीं आया, कितना ऐड चला दीजिए नहीं सेल आएगी, क्योंकि आपके कंपोनेंट्स मतलब आपके पास कम है ना बहुत सारे, तो कहाँ से लोगे उसको, जिसको कम है, प्रोडक्ट्स कम होंगे तो आपके पास कुछ आएगा ही नहीं। वही थर्ड पार्टी एक्चुअली क्या है, थर्ड पार्टी सोच रहे हैं कि जैसे एफिलिएट करते हैं वैसे थर्ड पार्टी का किसी का टाई अप करके, एफिलिएट उसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं ना, ड्रॉप शिपिंग कहते हैं कि मान लो
उसका ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आपने किसी से पहले से टाई अप कर रखा है, हाँ 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 बोला भी आपका सामान मैं बेचूंगा, कितने में बेचूंगा आपको नहीं पता, मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। तो जैसे उसका ऑर्डर आया, आपने उसको बोला भाई भेज दो सामान, जी। इस एड्रेस से भेज दो, तो वो ड्रॉप हम्म, शिपिंग होता है, इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, हाँ ड्रॉप शिपिंग का भी काम है, लेकिन मैं जो सोच रहा था वो ई कॉमर्स मतलब कि आप अपना बिजनेस शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो उसकी बात। तो ये जो आप ड्रॉप शिपिंग का लॉजिक बता रहे हैं, ये भी काम करेगा। ई कॉमर्स में ये कस्टमर है को कोई कि मतलब नहीं है ना, कस्टमर से कोई मतलब नहीं है ना ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग के लिए भी तो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट ही बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग आप करेंगे तो आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी पड़ेगी। ई कॉमर्स वेबसाइट का सिंपल सा मतलब है जहां से आप पेमेंट करके खरीद सकते हैं सामान। अब वो सामान कहाँ से दे रहा है आपको, कैसे दे रहा है आपको नहीं, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपके घर में पहुंच गया सामान, जो चीज आपने खरीदी वो चीज मिल गई आपको, दैट्स इट। इससे ज्यादा किसी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने 10 जगह से सामान खरीद के दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ड्रॉप शिपिंग वही हो जाता है, ई कॉमर्स वेबसाइट ही है, लेकिन किसी को ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट कौन सी है, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो इसमें ब्रांड बेच रहे हैं अपना। जी, एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग तो करते हैं कि थर्ड पार्टी का है, हमने अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर लिया या उसको आगे सप्लाई कर रहे हैं, बट एक चीज है कि इसमें जैसे प्रोडक्ट अमेजोन के प्रोडक्ट है या कहीं से भी प्रोडक्ट है, तो वो डायरेक्ट हमें अपलोड करना पड़ेगा या एपीआई के थ्रू हो जाता है ये प्रोडक्ट, जैसे इंपोर्ट अमेजोन करते के हैं? प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो आप? जी जी, अमेजोन से या तो अमेजोन से अमेजोन टोटल। का ड्रॉप शिपिंग जनरली होती नहीं है, उसमें तो यही होता है कि अमेजोन पे आपका वो एफिलिएट लिंक्स लगते हैं। हम्म। तो एफिलिएट लिंक्स में तो आपको क्लिक करने से वो वेबसाइट अमेजोन की वेबसाइट पे जाएगा। ओके, तो जो उनके प्रोडक्ट है वो इम्पोर्ट वन बाय वन इम्पोर्ट करना पड़ेगा या कैसे, मतलब इकट्ठा ही हो जाते हैं? हाँ, वो उनका देखो, अगर आप अमेजोन का काम अमेजोन से जोड़ने का मतलब नहीं कि आपको तो फिर ये बोलना पड़ेगा कि अमेजोन के सेलर से जुड़िए, वो ज्यादा बेटर है बोलना। अमेजोन से जुड़ने का मतलब है कि अमेजोन से तो आप सीधा जुड़ सकते हो थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केट। क्योंकि अमेजोन क्यों अपना सामान बेचने देगा आपको अपनी वेबसाइट, बिल्कुल। नहीं बेचने देगा। तो या फिर उनके सेलर से बात कर लीजिए, उनके सेलर से आप वैसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते कभी। तो डिपेंड करता है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढिए, आप अगल बगल सर्च करिए जहाँ पे जो बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे आप कारपेट का बिजनेस करना चाहते हैं तो ईस्ट यूपी में आइए, ईस्ट यूपी में देखिए कहाँ कौन कौन सा कारपेट मैन्युफैक्चरर है, उनसे बात करिए, बोलिए भाई हम आपको ऑर्डर देंगे, आप हमें सीधा भेज दीजिएगा। तो वो चीज चलती है, वो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है ना? ओके। और कोई क्वेश्चन? आज की क्लास खत्म हो गई है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? तो टाइमिंग का चेंज हो सकता है? Hello, sir. You will teach us how to create Google ads, how to create Facebook ads, and how to post. Everything you will teach. Who's there? I don't can't see the name. My name is Anandi. Okay, I can't see your profile here. That's right. Okay, I think it's from Karthik. The name is coming Karthik, right? Okay, okay. Yes, 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 sure. Yes, sir. We'll do that. Google ads and blogging, everything you will teach, and Yes, yes, everything, everything, everything. I'll teach you. and we will Not get an issue. recordings for each session. Yes, there will be recording of each and every class will be recorded, and it will be posted on that particular website. I think you'll be getting login ID, and you can see the whatever you have. Well, suppose you have missed the class, then you can check the notes. Notes you can't say notes actually. You can check the videos and all the stuff. Okay. Okay. Any other issue? Any other question? So in digital marketing, what we'll be doing, I'll be teaching you how to make a website. I'll be teaching you how to do the SEO, how to write the content, how to do Google ads, Facebook ads, how to promote through Facebook, each and everything. So don't worry. I'll be, after learning this course, you will know what actually digital marketing is and how it works. And for more information or for more knowledge, you can do some other person's digital marketing. Then only you'll understand. Okay. इंटर्नशिप कहाँ से कर सकते हैं बाद में, उसके लिए क्या करना होता है? वो भी हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। इंटर्नशिप बहुत बहुत मार्केट में अवेलेबल है,
देयर आर टू मेनी इंटर्नशिप्स अवेलेबल। ठीक है, वो नॉलेज पे डिपेंड करती है कि नॉलेज के हिसाब से उसमें इंटरव्यू होता है छोटा सा और उस पर सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इशू नहीं। इशू ये है कि जो चीज़ पढ़ना है, सी आप गूगल का सर्टिफिकेट ले लीजिए, कहीं से भी सर्टिफिकेट ले लीजिए, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आपको आता क्या है। जब आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा एसईओ कैसे करते हैं, क्या करते हैं एसईओ में, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हाँ आपने ये सीखा है, ऐसे करने से ऐसे होता है। और कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती आपसे, ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगी एसईओ में कि आप सारी चीजें जानते हैं। आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए एसईओ की, बस ये आपकी एक्सपेक्टेशन होगी। कोई भी आपको जब जॉब इंटरव्यू कर दोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन सबकी यही होगी, आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, दैट्स इट। And I will teach each and every basic things about digital marketing, so you don't need to worry. What you need to understand is you need to make sure what I am teaching, you need to gather that, I need to work on it. सिर्फ क्लास में पढ़ लिया, आज खत्म हो गया, आपको देखना भी पड़ेगा जो मैं बोलूंगा कि ये चीजें पढ़ी है, इसको देखिए, ऐसे करिए, वैसे करिए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा 2 महीना, बट 2 महीने मेहनत करिएगा तो आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा नेक्स्ट इसके बाद। ठीक है, Any other questions? टाइमिंग चेंज हो सकता है सर? टाइम कैन टाइमिंग ये जी। तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। क्या टाइमिंग क्या बता रहे हो आप योगेश? सर अर्ली मॉर्निंग दी बेस्ट है, अगर कंटिन्यू हो सकती है क्लासेस डेली 4 days 5 days। ओके ठीक है, वो आई विल बी आस्किंग द एडमिन्स कि वो क्या कहते हैं, किस पे डिस्कशन कर सकता हूँ, मैं आपको बता दूंगा इस बारे में। ठीक है सर आई थिंक क्लासेस आपके शायद डे में 2-3 टाइम्स लगते हैं ना ये वाले सर? हाँ, मतलब हर दूसरे दिन है मेरी क्लास। नहीं सर, जैसे इस फुल डे में एक ही बैच होता है या इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून 3 लोग? डिपेंड करता है सर लाइक जैसे अगर हमारा कोई क्लास मिस होता है आफ्टर मॉर्निंग क्लास, तो ऐसा पॉसिबल होता है कि हम इवनिंग क्लासेस को देगा? नहीं तो उसकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी ना, उसमें टेंशन क्या है। और ऐसा नहीं है अगर कोई मिस हो गई है और उसको सीखना है, समझना है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, 5-10 मिनट में समझाया जा सकता है। बाकी वीडियोस जो आप देख के चीजें क्लियर कर सकते हो, बाकी जो क्वेश्चन है उसमें आप पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास, उस चीज का कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा एसईओ तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। हाँ, वो क्लासेस या अगर मिस भी होगी किसी रीजन से तो उसको आपको कर लीजिएगा, वीडियो जरूर देख लीजिएगा उस क्लास का। ठीक है, तो उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आज के लिए हम लोगों ने सारी चीजें क्लियर कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा देखेंगे कि कैसे होस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज डोमेन, कैसे खरीदा जाता है, कैसे सारी चीजें होती है, ये सब चीजें करेंगे। ठीक है, सो आई होप टुडे क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू वेरी मच।